हम जब हम करिकुलम डिजाइन करते थे तो एक सेपरेट क्लास के लिए करते थे कि हफ्ते में 2 पीरियड्स होंगे सोशल इमोशनल लर्निंग के, ये टीचर की गाइड है और ये सोशल इमोशनल लर्निंग का करिकुलम है। ये 14 चैप्टर्स हैं जो 3 महीने के टाइम में कवर करने हैं। टीचर को बच्चों को सिखाना है कि भाई एंगर को कैसे मैनेज करते हैं, अपने जज्बात को कैसे समझते हैं, वो मूड थर्मोमीटर कैसे बनाते हो, तमाम चीजें। But the biggest flaw of the system is that social emotional learning is not a separate subject. It is so essential, especially for all the children, but especially for young girls, to be taught every subject integrated with social emotional learning. Like when you're teaching English, make sure that our curriculum have stories about self-awareness, about social awareness, about self-management, about relationship management. It is essential that when we are teaching maths, like लोग अब किसी ने हमसे पूछा भाई मैथ्स में आप SEL कैसे डालेंगे, बच्चों को मैथ्स में सोशल इमोशनल लर्निंग कैसे सिखाएंगे? भाई problems are word problems for children. Our problems could talk about sharing, our problems could talk about self-awareness, and we could use that. For example, in social awareness we could use diverse names. All our maths books have names like Raju, Ramu, same names all over. We need newer names to show the diversity, for example. That will ensure that younger children have access to names and terminologies that don't just, that are beyond them, that are outside of them. तो ये सारे इश्यूज हैं और आई बिकॉज दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, सो आई रियली वांट टू मूव ऑन टू टॉक अबाउट हाउ द सेकंड बिगेस्ट इशू अबाउट implementing social emotional learning curriculum in India is teachers. Our teachers are not trained. The lack of training for our teachers is the biggest hurdle. वो अगर social emotional learning के curriculum को deliver भी करती हैं तो वो उसे just as a curriculum deliver करती हैं. They actually do not believe in it. They do not believe in diversity, because teachers are also, they're also not, they don't have a singular identity. They come from multiple backgrounds. वो teacher भी misogynist होते हैं, teachers भी casteist होते हैं, communal होते हैं, transphobic होते हैं, तमाम चीजें होते हैं teachers. तो उनके पास खुद, और वो खुद ही मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं होते, उसमें उसके लिए काम करने में यकीन नहीं रखते. सो द एब्सोल्यूट लैक ऑफ only one-sided delivery of social and emotional learning and not teaching the teachers, in fact not even having policy in place or curriculum in place for B.Ed, M.Ed or TET, TGT, etc., all the teaching courses that are there, that actually tell teachers कि भाई देखो ऐसे social and emotional learning को डिलीवर करना है या इस तरीके से वो करना है. बस एक कहने को, एक चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर हर सेमेस्टर में बच्चों को पेपर पढ़ा, टीचर्स स्टूडेंट्स को जो बीएड कर रहे होते हैं, जो पोटेंशियल टीचर बन रहे होते हैं, उनको पढ़ा दिया जाता है और उसके अलावा उनको बताया ही नहीं जाता सोशल इमोशनल लर्निंग के बारे में. तीसरी चीज जिसके हम बारे में बात करेंगे वो है द लैक ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट. हमने एजुकेशन सिस्टम से पेरेंट्स को खाली फी गिवर बना दिया है, या वो जो बच्चे के बगल में बैठे ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, बस और कुछ भी नहीं. Parents are not even trained in how to manage the emotions of their children, how to talk. और ये चीजें हमको लगता है कि बस because we have made the position of a mother so divine, हमें लगता है कि माँ को सारा आसमान से इल्म या नॉलेज मिल जाती है बच्चे को ट्रांसफर करने के लिए, which is not the case. Even parents need to be involved in this whole conversation. So that is why when we were designing curriculum for social emotional learning, we also had a parental guide. Although that was just one step, creating a guide is just one step. क्या पता कितने parents उस guide को पढ़ते हैं कि नहीं. But how do we create programs and curriculum that make parents more than just fee givers when it comes to social and emotional learning? चौथा जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हम लोगों ने ये मान लिया है सोशल इमोशनल लर्निंग की जरूरत सिर्फ और सिर्फ अंडर प्रिविलेज और मार्जिनलाइज बच्चों को है. ऑल द कॉन्वर्सेशंस एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मोस्टली ओनली एम्पैथेटिक एनजीओज हैव टेकन अप this conversation and hence their target area has been marginalized children, especially marginalized girls, and so वो उस जगह के ऊपर ये implementation हुआ है. लेकिन ऐसा नहीं है. Managing your emotions is not, I mean, of course it varies from what background you come from. It depends on how you're managing your emotions, how you are working around relationship or social awareness is all placed and deeply rooted in your identity, whether it is your class, caste, religious, gender, all kinds of identities. But it is essential that social emotional learning is not just seen as
a program need to be implemented for underprivileged kids or children or girls. It is something that needs to be everywhere, because it is important and essential to teach children with privilege to be to learn how to work in a society, how to work with the society together. आखिरी आई थिंक कुछ मिनट बचे होंगे, तो उसमें हम बस ये बात करना चाहते हैं कि कैसे सोशल इमोशनल लर्निंग बहुत ही ज्यादा आवश्यक है अडोलेसेंट लड़कियों के लिए, और हमेशा से आवश्यक रहा है। इसलिए क्योंकि आई वांट टू फोकस ऑन द आइडिया ऑफ सेल्फ, that how centuries after centuries women have been told to not prioritize self, and they've been told to, and their idea of self has completely been diminished again and again. अभी भी अगर आप नारी शक्ति की कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, कोई ना कोई आके कह देगा कि नारी आपकी माँ है, बहन है, बेटी है। यानी a self of a woman has always been recognized in relationship with someone else. It is never a whole self of a young girl. So when she is 11 years old or 12 years old or 13 or 14 years old, she's thinking that I am a daughter, I am going to be a mother, or I'm going to be a wife, or whatever. Like, her idea of self is completely diminished. And I think this space gives an adolescent girl a chance to think about her own self, about her agency over her body, about her agency over her decisions, about her agency over her dreams, all kinds of desires, economic, socio-political, sexual, if I might say, once they become adult. And the whole the whole space of that. The second thing is that these adolescent women, there's something called, I'm sure everyone is far well aware than I am. Everyone knows about ecofeminism and how the environment and the importance of women leaders in saving the environment right now. And I think that a conversation about social emotional learning makes adolescent girl bosses, leaders that are going to bring communities together. Because I always repeat that we do not just need women in positions of power and leadership. We need empathetic, kind, self-aware women in positions of power and leadership. हमें सिर्फ औरतें नहीं चाहिए, हमें ऐसी लड़कियां और औरतें चाहिए जो कि नर्म दिल हों, हसास हों, बदलाव ला सके, ह्यूमन राइट्स में यकीन रखती हों, कम्युनिटी को आगे बढ़ा के ले जाना चाहती हूँ. We do not just want women who are going to be exact same copies of men who were in the positions before them. And actually, and this is just the beginning of the conversation. It has to go beyond just women, and we have to go beyond gender binaries when it comes to social and emotional learning. वक्त कम है, बट हमें लगता है कि वक्त आ गया है कि हम लोग एडोलेसेंट लड़कियों के पोटेंशियल को समझें और उनको वो टूल्स दें जिससे वो आसमानों में उड़ सकें. और हम खत्म करेंगे अपनी बात कैफी आजमी की नज्म के आखिरी कुछ शब्दों के साथ, वो ये कि तू फला तू नो अरस्तू है तू ज़ुहरा परवीं, तेरे कब्जे में है गर्दूं तेरी ठोकर में जमी. हाँ उठा जल्द उठा पाए मुकद्दर से जबी, मैं भी रुकने का नहीं, वक्त भी रुकने का नहीं, लड़खड़ाएगी कहाँ तक के संभलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे. And to make adolescent girls capable of getting up, walking and owning this world, we have to give them the tools of social emotional learning, tools to understand themselves, become better leaders and bring the community together. Thank you. Shukriya. Thank you so much, Sabika. That was so powerful, so insightful. I think if I want to moderate and say कि ऐसा अच्छा ये एक point, I think हो नहीं पाएगा. इतने बेहतरीन points बोले हैं. Parents का involvement के बारे में जो बातें बोली हैं, किस तरीके से हमें ये conversation actually resource poor background से लेकर आगे बढ़ाने की जरूरत है, और सिर्फ एडोलेसेंट लड़कियों से ही नहीं, आगे इसको लेकर जाने की जरूरत है. अमेजिंग अमेजिंग इनसाइट्स, थैंक यू सो मच. और मैं नज़्म का वेट कर रही थी, आपने किया ये, मुझे बहुत खुशी हुई. थैंक यू सो मच साबिका. Okay, so I would introduce Beth, who is our next speaker. As the Global Glow Senior Program Manager of Program Design and Evaluation, Beth leads the curriculum development team to write Global Glow's programming.
With more than a decade of experience in informal education spaces, she's passionate about creating equality, engaging programs that uplift and educate youth. Today, she will be discussing the approaches used in writing cell curriculum, keeping in mind the varied context in which Global Glow partners operate. Over to you, Beth. Thank you. I'm not quite sure how I follow to be here. I'm all pumped up from that now. Thank you so much for having me here today. I'm really excited to be able to talk about a super important topic with you all today. So yeah, we'll talk about how we went about designing our SEL curriculum and what that process looks like for Glow. So I've been with Global Glow for about 3 years now, and in that time we've put a lot of thought and effort into our curricula. We had been doing what I think is very common for organizations working in the out of school time or informal education space, that we were sort of unintentionally or semi-intentionally embedding SEL practices into our program. And with this new Glow Club, we've been really intentional about absolutely including SEL, specifically CASEL, the Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, CASEL competencies into our curriculum. And I'm going to talk today mostly about Glow Club because it is the curriculum that we're actively writing and really into with SEL. This absolutely applies to all of the programs that Glow has out in the world, including Healthy Glow and Girl Boss. So when we started this, we had to really come at it from a place of learning. As I said, we had been kind of doing it, and I've been kind of doing this for most of my career, and to have a name on it and to really be able to learn about what SEL was it felt very familiar, which was great. And then there was just so much more to learn. So we came in it that way. We took a lot of trainings, we did a lot of reading. We wanted to make sure that our team really understood what we were learning and therefore how to incorporate it in work. Again, it was about intentionality on our part so that we could be intentional within the curriculum. Some of the ways that we embed SEL practices into our writing, we do a lot of small group work. We encourage them to come together, to make agreement, to compromise, to make decisions that not only benefit a single person, but benefit the group or the club or the community as a whole. We include many, many, many moments of reflection. We ask them to think about what an activity or what a subject means to them or says about them, and how they can use that information in other contexts. The 3 years of Glow Club are written so that the first year girls spend most of their time thinking introspectively, and then years 2 and 3 focus outward into the local community and then address community in a more broad sense. And on that note, we encourage them to think about their community context all the time. What is their world? What is it like to be a girl in your world? How do you fit in that world? How does that relate to other girls in the world? We really intentionally push empathy and have them thinking about not just themselves in their local context, but how that fits into the greater web of the girl world, right? We encourage problem solving through empathy, kindness, and reflection, with the goal that these sort of soft skills will transfer into the more hard skills, right, that they're receiving in school and in other places. So I'll talk now a little bit about our actual writing process, and then we'll get into outcomes and what we hope to accomplish. And again, I'm going to talk mostly about Glow here because we are actively writing Glow Club, excuse me. So we are writing material that's to be used in 23 countries across multiple languages, multiple cultures, multiple contexts. And as you can imagine, that's a daunting task. We know that one piece of writing is not going to be perfect for everyone. That's just simply not possible. And we recognize also that our writers are coming from a specific and different context than most of the participants in our club. We are all American women. We are varied amongst ourselves, but we recognize that we're coming from a different context, and we're very careful to not inject
too much of that as possible into our writing to make it feel and be universal, or as universal as possible. We usually refer to Glow Club as a flexible framework. We wanted to create something that at its base is educational and speaks to our organizational outcomes, while also providing options for partners and things for them to fill in their own context and make the curriculum relevant for their girls in their specific context. Logistically, we have a best practices writing document that we follow. We try to write in such a way that is easily translatable for accessibility across as many places as possible. We don't use American idioms. We don't use conjunction, so I don't say don't, I say do not, to sort of aid in that process, because the actual process of translating and reading is a huge part of the curriculum that is a little less thought about. Right? We think about the content and the activities, but it's a whole package. We endeavor always to find resources and references from countries that represent our partners, and we encourage the mentors who are actually facilitating the program to fill in contextual gaps that we will just simply never know or be able, to know. We include facilitation notes that are designed to help mentors modify the curriculum in ways that align with their age group or the developmental age group of their groups. And we also offer modifications based on materials, because we know that access or lack of access can be an issue in some of our partners' specific contexts. So we want to make sure that we are doing as much of the work for them as possible and offering them options to take the base and make it their own without having to do too much work, we hope. We never want our mentors to feel like they have to rework or rewrite an activity to make it work for them. But we want to also make sure that they're getting the baseline of the SEL skills that we're putting out there, the actual educational material of it. We are actively evaluating, both from a traditional survey, pre and post measurement process perspective, and through regular discussions with our partners about what's working, what isn't, how long did that take you, how was that a burden, what felt good about that project, where we are constantly reaching out to our partners for feedback, and we're making real time changes on new material that we're working on based on that feedback. We are making tweaks to our curriculum as we go along based on sort of the patterns of feedback that we get. We're very intentionally looking for places to increase partner involvement, specifically with youth voices. For the last 2 years, we've had a group called the Insight Committee. It's made up of partner coordinators who are sort of lead adults on the ground, adult mentors who actually facilitate program, and youth participants. Each partner represented on that committee has one of the three, or each of those people involved. And we've gotten some really interesting information from them. The first year, we polled them a lot about how they felt about Glow, what they thought about Glow, what their experience of Glow was, Glow Club. And then the second year, we've actually had them doing some writing for us, which has just really been an interesting and fascinating project. It's taught me a lot about the way that we approach writing and how to train somebody how to do that has been interesting. And then what we're getting back from them is teaching us, one, what they want to know about, what's important to them, the ways that they want to learn about it, which is super important to us because it might be very different than what we're thinking. And it's also showing us what they think Global Glow is, if that makes sense. So we're sort of reflecting back to us what they think we are, which is interesting, and I will say validating. Just really has been a nice sort of side effect of that. Our hope with all of this, obviously, is that we meet our outcomes. We want girls to be able to advocate for themselves and what they want. We want them to achieve academically. We want them to make good decisions and feel good about their future opportunities, whatever they want those to be. We also know that none of that happens in a vacuum.
social emotional learning is a team sport. You know, everybody has to play in order for it to work. If a girl feels empowered and supported inside our club space, that's wonderful, and we want that. But she also needs to feel that at home, at school, in a job someday, out in the world in general, right? And I agree that training is key, right? More adults that girls are interacting with, you know, for their own life. More adults need to know and have these SEL skills at the ready in order to support girls and all youth in more places. And we try as much as possible to include opportunities to invite parents in, invite families and guardians in, invite the community in so that they can see what is happening in the club space. And we also encourage the club space to move outside of the room, right? And to do things as a community so that outsiders and people who aren't necessarily affiliated with the club, with Global Glow, can see what's happening. And, you know, perhaps it's small changes, but, you know, seeing girls do something that they're not used to girls doing is just flipping tiny switches in their brain, we hope, right? We're hoping for a ripple effect into the families and into the community. I think that's all I have. So with that, I'll conclude, but thank you so much for this time. I appreciate it. Thank you so much, Beth. I think you have covered it all, from us implementing it and from giving insights of how you go about creating the amazing curriculum that you people do at Global Glow, and giving us agency to actually implement it in our relevant socio-economic, political context. I think that kind of agency is really important. And of course, always looking forward to feedback and restructuring it back in the curriculum. Amazing work. Thank you. Thank you for sharing. Sorry. We will move on to our next speaker. Our next speaker is Kriti Prakash. As the state lead of Uttar Pradesh and Jharkhand for Breakthrough India, Kriti believes that working on social cause, especially gender issues, is not just advocacy, but a mission which guides her professional as well as personal life. During her career, she has worked on various gender and human rights issues, such as building religious tolerance and inclusivity amongst youth. She believes that gender-based violence is not a private matter and has worked with various other Lucknow-based organizations, campaigns, and movements to fight for this cause. She presently manages a program that trains 4 lakh adolescents for Breakthrough India. Over to you, Kriti. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी स्पीकर्स को सुन रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सब लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं सोशल इमोशनल लर्निंग्स को लेके। और ये एक ऐसा विषय है जिसपे शायद बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग पे बात करते हैं, हम नॉर्म्स पे बात कर रहे हैं, हम हेल्थ पे बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल इमोशनल लर्निंग्स का जो पूरा विषय है, खासतौर पे इमोशनल लर्निंग्स का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम एडोलेसेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पे आप बहुत सारे बदलाव को फील करते हैं, बहुत सारे सडनली एक कम्युनिटी में हम लोग जब भी देखते तो अक्सर एडोलेसेंट से कहते हैं, हमको यही कहा जाता है कि अब आप बड़े हो रहे हो जब कुछ होता है, और जब हम कुछ डिसीजंस लेने जाते हैं तो कहा जाता है अभी तुम बहुत छोटे हो। सो ये जो कन्वर्सेशन है कि हम छोटे हैं, जहाँ पे हम अपनी डिसीजंस को ले रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, और जहाँ पे हम डिसीजन को जहाँ नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे कम्युनिटी का कोई फायदा दिखता है, वहां पे कम्युनिटी एंड सोसाइटी ये कहता है कि आप बड़े, यू हैव टू टेक अ एक्शन बिकॉज यू आर अ यंग एंड यू टेक। सो और उस समय का ये जो पूरा जो एडोलेसेंस का इश्यूज है वो बहुत 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 केंद्र में रहता है इमोशनल लर्निंग्स का। और मुझे लगता है कि हम हर तरह से बात करते हैं, लेकिन अगर हम मानसिक स्वास्थ्य को लेके बात नहीं करेंगे, उनके इमोशंस को लेके बात नहीं करेंगे, व्हाट दे फील, हम कोई भी प्रोग्राम नहीं
आगे ले जा सकते हैं। हम जो भी प्रोग्राम्स लेके आते हैं, लेके जाना चाहते हैं, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा वो किस तरह से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्या उनकी वाकई जरूरत है इस प्रोग्राम की, और वो इस प्रोग्राम को कैसे लेके आगे चलना चाह रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगी। हम लोग एडोलेसेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम लेके चल रहे थे, और हम लोगों ने जेंडर एंड वायलेंस एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे बात करने का सोचा, और हम अपनी कहानियां लेके और अपने काम को लेके हम अपने चल रहे थे। तक हम एक गांव में पहुंचते हैं, और हमने वहाँ पे यंग एडोलेसेंट्स के साथ में हमने एक वर्कशॉप की, और हमने उसके बाद हम एक गांव का एक पूरा मैपिंग करते हैं और बात करते हैं कि कैसे यू रिड्यूस योर वायलेंस इन योर विलेज, एंड हाउ यू रिड्यूस योर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन योर विलेज, मेक अ प्लान फॉर योर विलेज। एक लड़की उसमें से खड़ी होती है और बोलती है सोचने के बाद में, मैम ये तो नहीं करना है मुझे, मेरे ना प्रॉब्लम ये नहीं है इतना, इसके पीछे का एक और प्रॉब्लम है जो हम लोगों को समझना है। तो हमारे ट्रेनर्स और हम लोग ने बात किया उनसे कि आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप इस ट्रेनिंग्स को कैसे आगे लेके चलो। उन्होंने बोला कि देखो, मेरे ना गांव का नाम बदल दो क्योंकि जो आधा प्रॉब्लम है वो मेरे गांव के नाम से है, और वो मेरे गांव का नाम जो है ना वो कूड़ा मऊ नाम है। और ये कूड़ा मऊ मुझे मेरी बहुत सारी चीजों से रोकता है। कैसे रोकता है? वो मेरी कास्ट की आइडेंटिटी को मेरे सामने हमेशा रखता है कि आप तो कूड़ा पीने हो, इसलिए आप कूड़ा मऊ से आते हो। और ये मेरे ऊपर इसका असर पड़ता है, ना केवल मेरे ऊपर, मेरे जैसी बहुत सारी एडोलेसेंट्स के ऊपर। और जब ये होता है तो हमको स्कूल में चढ़ाया जाता है और हम स्कूल नहीं जाते हैं। और जब अगर हम स्कूल जाते भी हैं तो हमारे साथ बुलिंग होती है, और ये कहा जाता है अरे तुम तो कूड़ा बीनने वाले हो, और ये हो और वो है, और हमको वो स्पेस नहीं मिलता है। टीचर्स भी हमको उसी तरह से देखते हैं। और हमारे जो गांव में कोई भी योजनाएं या कोई भी बात करता है तो वो सीधे अरे ये इस कास्ट को तो जरूरत ही नहीं है, ये तो है ही है कूड़ा बीनने वाले, और इस तरह का चीजें। तो तो वो जो वो जो पूरी उसने बात बोली, वो इतना ये हमारे लिए लर्निंग था। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन ये ब्रेक थ्रू का लर्निंग था वहां पे उस जगह पे आके कि लुक एट आर योर सेल्फ। हम जा रहे हैं अपना एजेंडा लेके, पर वो एडोलेसेंट्स ग्रुप उस चीज को कैसे लेके चल रहा है, देख रहा है। और उन लड़कियों ने ठाना कि हम इस गांव को कूड़ा मऊ से सुंदर नगर बनाएंगे, और ये 4 साल में उन्होंने करके दिखाया। जो एक सदियों से बातें, और लोग बहुत हंसे उनके ऊपर कि अच्छा ये लड़कियां करके दिखाएंगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कूड़ा मऊ से सुंदर नगर बनने के पीछे एक पूरा प्रोसेस होगा। वो सुंदर नगर कैसे बनेगा? जब हर लड़की खुश होगी, जब हर लड़की अपने अधिकार के लिए बात करेगी, जब हर लड़की स्कूल जाएगी, जब हर लड़की और अपने माता पिता से अपनी हर बात को रख पाएगी, जब यहाँ पे हर लड़की का विवाह 18 के बाद होगा। तो वो उन्होंने पैरामीटर्स भी तय किए सुंदर नगर बनाने के लिए। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा चला वो ये देखने को मिला कि हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने ये सोशल इकोलॉजिकल मॉडल पे हम काम कर रहे थे, संदीप और शरद एनवायरमेंटल सोसाइटी इस पूरे प्रोजेक्ट में हम लोग के साथ में था, हम कदम थे, हम लोग साथ में कर रहे थे। हम लोगों ने एडोलेसेंट्स को केंद्र में रखा और उनके एक ताना बाना बुनना शुरू किया। उनके एम्पावरमेंट की बात एडोलेसेंट्स के साथ की, पर कम्युनिटी को भी तैयार किया। अगर हम सोशल इमोशनल लर्निंग्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो उतना ही हमें कम्युनिटी को भी तैयार करना पड़ेगा कि वो भी तो समझें कि वो कितना जरूरी है। पेरेंट्स का क्या रोल है उसमें, टीचर्स का क्या रोल है। जैसे सभी का बात करी थी, मैं बहुत ही मतलब उसे वो रखती हूँ कि टीचर्स सिर्फ उसको पढ़ा के चले जाते हैं, वो कनेक्ट ही नहीं करते हैं। पेरेंट्स से अगर आप बात करो, एम्पावरमेंट की बात करो या इमोशंस की बात करो, तो कहते हैं अरे ये तो बच्चे, ये तो ऐसे ही नहीं सुधरते हैं, ये तो इनका नाटक है रोज का। हाँ, ये कोई इमोशन नहीं है, ये तो इसकी तो आदत है रो के बात करने की। पर वो रो के क्यों बात कर रही है? वो उसको इतना हर बात पे रोना क्यों आता है, या वो इतनी एग्रेसिव क्यों है, या वो इतनी हर बात को क्यों है? उसके पीछे की पूरी क्या उसके उसके स्वभाव का, कहते हैं अरे ये तो इसके स्वभाव का हिस्सा है। सो स्वभाव का हिस्सा वो कैसे बन रही है, बनाया जा रहा है उसके साथ में। और फिर वही उसको लेके वो कैरी करती रहती है, उसी एग्रेशन को लेके कैरी करती है, उसी इमोशंस को लेके कैरी करती है।
जिसके चलते बहुत सारे उसके जो जो वो अपने सपने देख रही थी, जहां तक वो पहुंचना चाहती है, वो उसके चलते वो उस इमोशंस के बोझ के चलते नहीं पहुंच पाती है। जब हम लोग अपना प्रोग्राम तारों की टोली लेके हम लोग कम्युनिटी में गए, जो खासतौर पे लाइफ स्किल बेस्ड था, और हम लोगों ने इसमें जानो जागो जगाओ के कॉन्सेप्ट पे बात किया, और इसमें हमने कहा कि जब तक एक एडोलेसेंट अपने बारे में जानेगी नहीं, जागेगी नहीं, तब तक वो जगाओ के कॉन्सेप्ट पे वो नहीं पहुंच पाएगी। तो जो जो ये जानो जागो जगाओ का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जब जगाओ में पहुंचते हैं, वहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आता है कम्युनिटी का और फैमिलीज का, इमीडिएट फैमिलीज का, या उसके सो वहां पे तक पहुंचने के लिए एक तो हमें एडोलेसेंट्स को बहुत तैयार करने की जरूरत है, और अपने करिकुलम्स के साथ में भी सोशल इमोशनल लर्निंग्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको साथ में लेके चलने की जरूरत है। जब हमने एडोलेसेंट्स को पेरेंट्स के साथ जब भी बात करने में देखा है, तो ये देखने में आया संदीप और हम लोग ने देखा कि कन्वर्सेशन ही नहीं है कम्युनिटीज में, पेरेंट्स एंड और बच्चे बात ही नहीं करते हैं। आप ये देखिए कि हम लोग ये सोचते हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं ना, माए माए और बेटियां बहुत बात करती हैं, पर हमारा जब प्रोग्राम हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने देखा माँ और बेटी भी क्या बातें करती हैं, एक बहुत लिमिटेड बातें होती हैं। वही कभी एस्पिरेशंस पे बात नहीं हो रही है, कभी उनकी फीलिंग्स पे बात नहीं हो रही, ना ही फीलिंग माँ अपनी बेटी को बता रही है, ना ही बेटी अपनी फीलिंग अपनी माँ की तरफ से नहीं। और इसमें अगर हम जेंडर का देखें तो पिता और बेटी के बीच में तो कुछ भी संवाद नहीं हो रहा है। आप एक समझिए, एक पेरेंट्स के तो एक बच्चे के तौर पे इतना पेरेंट्स एंड बच्चे के बीच में इतना गैप है, उसका वो कहाँ जाके अपनी बातों को करेगी, वेयर इज द स्पेस, वो सेफ स्पेस कहाँ हम सबसे ज्यादा हम कहते हैं अपने क्लोज अपनी माओ से होते हैं, हम सब कहते हैं, हम भी, मैं भी कहती हूँ मैं अपनी माँ से क्लोज हूँ, लेकिन मुझे नहीं याद आता कि कभी मैं एडोलेसेंट एज में तक अब मैंने बात करना शुरू किया व्हाट दे, अब जब हम लोग ने खुद के ऊपर इतना काम किया और अभी भी कहीं जाके मुझे लगता है कि हम ये प्रैक्टिस छोड़ रहे हैं, अब प्रैक्टिस करने लगे। कभी मेरी माँ ने और मैंने एक दूसरे के साथ शायद कभी चाय पीते हुए हम लोगों ने एक दूसरे की फीलिंग्स के ऊपर बात की, उनको लगता था मैं समझ रही हूँ, मुझे लगता था वो मुझे समझ रही है, पर कन्वर्सेशन नहीं था, ये समझना, पता नहीं वो मुझे क्या समझ रही थी, मैं उन्हें क्या समझ रही थी, और इसके चलते में कितने गैप्स थे। मैं अगर उनकी बातों को समझ पाती और वो मेरी बातों को समझ पाती, तो शायद जो मैंने कुछ और सपना देखा था आज मैं उस तक पहुंच पाती, और शायद जो आज कन्वर्सेशन मेरे फादर के साथ आज जो हो पाती है, अगर उस यंग एज में मैंने कर ली होती, तो शायद जो मैंने खूबसूरत एज अ एडोलेसेंट मैंने जो जो मिस किया है उसको आज मिस ना करती मैं, क्योंकि कन्वर्सेशन ही नहीं था। मतलब आप कमरे में अपने पिता के साथ एक बेड पे नहीं बैठ सकते हो, हम उन फैमिलीज से आते हैं, हम किसी गांव से नहीं आते, हम शहरों से आते हैं, हम उस जहाँ पे पिता बैठेंगे आप उस लेवल पे नहीं बैठ सकते हो, उस कमरे में नहीं जा सकते हो, हम उस परिवारों से आते थे। सो कितना एक एक दबाव कितना फील होता है, और एक आप जैसे ही 11 से आप 10 से ऊपर पहुंचते हो, आपके ऊपर सब ये डालना शुरू किया जाता है, आपका आपका सर खोल के उसके ऊपर, और कोई बताता नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज ये होता है, नोबडी टेल यू करना है, ये डू है एंड डोंट्स है, आप फॉलो करने लगते हो चीजों को, और आप उसको फॉलो करते करते आप उसको एकदम अपने जिंदगी का हिस्सा एंड नो क्वेश्चन। और हम अपने जो अपने बच्चे हैं उनको भी वही 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 चीजें आगे लेके चलने की कोशिश, हमने कभी क्वेश्चन किया नहीं और ना ही हमने कभी सोचा। तो एक एग्जाम्पल और मैं शेयर करूंगी, हमारा झारखंड के ग्रुप में हम लोग बैठे थे और बात कर रहे थे, और एक एडोलेसेंट्स की ने बताया कि मेरी पढ़ाई को लेके बड़ा कन्वर्सेशन चल रहा है कि अब भैया पढ़ेगा या मैं पढ़ूंगी, क्योंकि फोन एक है और उसे एक फोन पे किसका वो होगा, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है। सो उन्होंने क्या किया कि डिस्कशन शुरू हुआ और फिर फाइनेंस की भी बात हुई कि स्कूल कौन जाएगा। तो उस बच्ची ने क्या किया, एडोलेसेंट ने, कि जाके उसने जो हम एक एक्टिविटी कराते थे, मेरे सपने हमारे तारों की टोली का एक चैप्टर,
वो चैप्टर जाके अपने पेरेंट्स के साथ किया और उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि आप लिखो। तो हम लोग ने वो कन्वर्सेशन कैसे आप पेरेंट्स के साथ बड़ों से बातचीत और इन सारे एक्टिविटीज के जरिए हम लोगों ने वो बिल्ड किया था, वो प्रैक्टिस कराई थी एडोलेसेंट्स के साथ। तो वो चैप्टर वो अपने पेरेंट्स के साथ कर पाई और उस चैप्टर का रिजल्ट ये था कि वो लड़को एडोलेसेंट ने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया, उसके घर में एक दूसरा फोन भी खरीद के आया गया और उसकी भी पढ़ाई कंटिन्यू की। जब पेरेंट्स ने उस सपने को देखा कि मेरे सपनों को मैं इसलिए नहीं पूरा कर पाया क्योंकि ये बैरियर्स थे और मेरी बच्ची आज वहीं पे खड़ी। सो ये जो प्रैक्टिस की बात है, हम एडोलेसेंट्स के साथ बार बार ये कहते हैं प्रैक्टिस करो, कन्वर्सेशन करो, स्टॉप मत करो। और जितना हम, तभी हमारे इस प्रोग्राम का नाम भी था बनेगी बात साथ साथ। हम इसको हमेशा ये कहते थे, तेरी तेरी जीत मेरी जीत। तो ये हमारा नारा ही था। संदीप और शोहरतगढ़ में और लखनऊ में, हम सातों डिस्ट्रिक्ट में काम करते, जहां पे हम लोग पहुंचते थे वो नारे लगने लगते थे, तेरी जीत मेरी जीत। सब एडोलेसेंट्स के साथ में बात करते थे। तो हम लोग हमेशा घरों में भी नारे लिखवा के रखते थे कि तेरी जीत मेरी जीत। यानी जब बच्चा जीतेगा तो पेरेंट्स जीतेंगे, पूरा परिवार जीतेगा, समुदाय जीतेगा तो फिर वो साथ में वो एडोलेसेंट भी उस तरह से जीत का हिस्सा बनेगा। सो ये बहुत जरूरी है कि वो सेफ स्पेस क्रिएट किया जाए एडोलेसेंट्स को। खास तौर पे कोई भी प्रोग्राम अगर हम लोग लेके चल रहे हैं और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आप सभी लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये भी कोशिश करना है कि हम पहले तो हम खाली दिमागों से जाएं। क्योंकि अंजलि का जो कूड़ा मोह की कहानी है, ये मेरे लिए बहुत लर्निंग रहती है और मैं हमेशा इसको कहती हूँ कि ये इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि अपना ना बस्ता अंदर रख के जाओ, अपना बस्ता अपने घर पे रख के जाओ, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो आज समुदाय से। ये सोचना कि हम सिखाने जा रहे हैं, ये हमेशा मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी गलती। खाने नहीं जा रहा है, वो हमसे ज्यादा पावरफुल पोजीशंस में है, वो हमसे ज्यादा उनका अनुभव है। जिस जिस जो हम लोगों के साथ प्रिविलेजेस है, वो शायद वो प्रिविलेजेस नहीं है वहां पे। सो वो प्रिविलेजेस के बगैर वो जिस तरह से जीवन को यापन कर रहे हैं, उनके पास हमसे ज्यादा अनुभव है। जिस तरह से अंजलि ने अपनी कहानी को लेके वो आगे बढ़ी, शायद मैं भी नहीं कर सकती हूँ। वो उसके लिए बहुत करेज चाहिए। जिस तरह से झारखंड की कहानी मैंने आपको बताई, सविता नाम था उस लड़की का, जिस तरह से सविता ने अपनी पढ़ाई को लेके कंटिन्यू किया, शायद मैं भी नहीं कर सकती थी। सो इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि हमको अपने बस्तों को किनारे रखना पड़ेगा, हमको अपने आप को एज अ फैसिलिटेटर देखना पड़ेगा और हमको उस कड़ी को देखना पड़ेगा कि क्या टूट रहा है इसमें। जो सबसे जो जो कड़ियां टूट रही हैं उनको हमको साथ में लाके साथ में जोड़ना पड़ेगा। चाहे वो कन्वर्सेशन हो, संवाद की बात कर रहे हैं, इंटरजेनरेशन की बात कर रहे हैं, इंटरजेंडर डायलॉग्स की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरा ये है कि हमें साथ में सोशल इकोलॉजिकल, अगर हमें एडोलेसेंट्स के साथ में काम करना है तो हमको कहीं ना कहीं अन्य एस्पेक्ट्स को भी देखना पड़ेगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे वो एडोलेसेंट उठ के जाती है वापस अपने ही समुदाय में बात करने के लिए, और उसको वहीं से ब्लैक पीछे आ जाती है जब उसको वो सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मैं यहीं पे बात को खत्म करूंगी। आई नो बहुत सारे स्पीकर्स भी हैं और मुझे भी सबको सुनना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू कृति जी, मजा आ गया आपकी बातें सुन के, आपके फील्ड के जो एक्सपीरियंसेस हैं। और आई थिंक आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बोली कि हमें अपने बस्ते रख के जाने होंगे और हमें देखना है और सीखना है, फिर ये देखना है कि कैसे आगे ये सीखने सिखाने की चर्चा आगे बढ़ सकती है। अगर हम जाके थोपना शुरू कर देंगे तो आई थिंक पर्पस ही खत्म हो जाता है हमारा एम्पैथेटिक ऑर्गेनाइजेशंस की तरीके से काम करने का। थैंक यू सो मच। Our next speaker is Usha Chaudhary. Usha is a social activist with 20 years of experience in ending gender-based violence and child marriage in India. She founded Vikalp Sansthan, a Rajasthan-based NGO working on issues of child marriage, girls' right to education, and domestic violence through youth engagement and empowerment. Her journey began when she successfully fought off being married to a stranger at the age of 14. This led her to dedicate her whole life to ending child marriage and bringing justice to the most disadvantaged. She has been awarded the Laurel Paris Femina Women Award, the Women's Excellence Achievement Award, and the Devi Award from the New Indian Express. She has also given speeches at various international events.
Today, we look forward to learning about her best practices and challenges from years of ground experience on how to secure women and girls' rights. Usha ji, over to you, please. Thank you, Pallavi, and really thank you very much SCS to organize webinar on this very important issue. Really, it's very important, and because this is the month of International Girl Child Day for dedicated to all girls. So thank you very much, and thank you giving me this opportunity to share my learnings, best practice challenges with the all today's participants. कमला भसीन जी को जो श्रद्धांजलि देते हुए मैं एक लाइन एक गीत की उनकी गाऊंगी, वो है कि जो कमला भसीन जी जो हम हमारे हर चीजों में, हर गानों में, हर समय पे गाते हैं, इस तरह का लड़कियों के लिए उसको हम गाते हैं, और जो हम हर समय यूज करते हुए है कि मूसी के अब जी ना पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो, मूसी के अब जी ना पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो, बापू कहे बिटिया पढ़ने ना जाना, अपना मैं ज्ञान बढ़ाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। तो कमला जी के इस गाने की जो थीम है, सेल्फ एम्पावरमेंट है, सेल्फ एजेंसी है और वॉइस रेज है, ये सारी थीम है, और यही थीम हमारे विकल्प के सारे लड़कियों के कामों की है कि लड़कियां कैसे सेल्फ एम्पावर हो पाए, सेल्फ एजेंसी बन पाए और खुद के लिए वो एक्शन ले पाए, खुद अपनी बात को रख पाए। ये हमारा पूरा इस काम की थीम है लड़कियों के लिए। और विकल्प का जो काम है वो मार्जिनलाइज, वनरेबल, रूरल, रिमोट एरियाज की कम्युनिटीज के साथ काम है। तो जब इस एरियाज की ऑलरेडी जो वनरेबल मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, तो फिर हम देखते हैं कि लड़कियों की स्थिति तो उसमें और वनरेबल हो जाती है, वो और इन सब चीजों में पीछे हो जाती है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि राजस्थान काफी चाइल्ड मैरिज में हाई रिस्क है, काफी चाइल्ड मैरिजेस राजस्थान में होती है। लगभग हम कहें कि 8 से 16-17 साल तक की के बीच में लड़कियों की शादियां हो जाती हैं। हालांकि 8 से 13-14 साल तक नहीं ससुराल भेजते, ससुराल 15 साल पर भेजते, लेकिन शादियां वो 8 साल से ही लगभग हो जाती है। और काफी बार इससे छोटी लड़कियों की सगाई भी बहुत जल्दी हो जाती है। और जिस तरह से शादी को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि कास्ट पंचायत काफी हावी है, तो सगाई को भी ब्रेक नहीं कर पाते, सगाई भी नहीं तोड़ पाते हैं। तो बहुत छोटी लड़कियों की सगाई हो जाना, शादी हो जाना, यहाँ हम बात है। तो ऐसे एरिया का एक बैकग्राउंड है जहाँ हम काम करते हैं। हम 2 तरह की लड़कियों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। एक है कि जो लड़कियां गर्ल्स एट ए रिस्क, जो रिस्क पे है, जिनका बाल विवाह होने की संभावना है, पढ़ाई छूटने की संभावना है, उस तरह की लड़कियों के साथ हम काम करते हैं। और दूसरा है कि जो हमारे चाहते हुए भी हमसे पहले या हमारे तमाम कोशिशों के बाद भी जिन लड़कियों की शादी हो गई है, और वो यंग मैरिड गर्ल्स जो इन लॉज के साथ रह रही है और जो पीहर में भी रह रही, तो ऐसी लड़कियों के साथ भी हमारा दूसरा काम है। क्योंकि हमने जब हमारी ये लड़कियां कहीं भी हम जिनकी शादियां हो जाती तो वो दिखती नहीं थी, और काफी लड़कियां शादियां होकर उस गांव में भी आती थी, लेकिन उन तक हमारी पहुंच नहीं थी। तो फिर हमने एक एक्शन रिसर्च किया विकल्प ने यंग मैरिड गर्ल्स के इश्यूज पे। 300 यंग मैरिड गर्ल्स तक हम पहुंचे। तो उनकी सिचुएशन के बाद फिर हमने इस काम को बहुत गहराई से किया और समझा कि उनके साथ काम करना बिल्कुल बहुत जरूरी है। वो एक तरह से डार्क बंद है उनका गेट। जब हम बात करते थे जाके कि हमें इनसे बात करें, तो सास कहती थी वो क्या समझती है, वो तो कुछ समझती नहीं, मैं हूं ना, मेरे से बात करो, मैं उसको अपनी, मैं अब बता दूंगी उसको आपकी बात, मैं उससे बात नहीं करनी। तो कभी वो घूंघट से बाहर आ ही नहीं पाती थी और बात ही नहीं सुन पाती थी। तो इस तरह की लड़कियों के साथ हमारा काम है। और हमारी जो पूरे काम का थीम है वो गर्ल सेंटर्ड थीम है। सारे जितने भी चीजें हैं गर्ल सेंटर्ड हम उस काम को करते हैं। और ये, लेकिन जो पेरेंट्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मदर हैं, फादर हैं, इन यंग मैरिड गर्ल्स के पति हैं, या आंगनवाड़ी एएनएम है, टीचर्स हैं, पंचायत हैं, उनके साथ भी हमारा काम है। क्योंकि ये सब लड़कियों की लाइफ को, चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और हमारा कोशिश है कि लड़कियों का गर्ल फ्रेंडली इन्वायरमेंट कैसे बन पाए,
जिससे उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो पाए, ज्यादा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो पाए और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट हो पाए। तो गर्ल फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने के लिए हम जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ भी हमारा सारा काम हम करते हैं। और हमारे सारे प्रोग्राम है वो लड़कियों के साथ बैठ के हम बनाते हैं कि क्या क्या लड़कियां करना चाहती, किस तरह। तो लड़कियों को साथ डिस्कस करके प्रो गर्ल्स हम प्रपोजल्स बनाना है या प्रोग्राम्स बनाना है वो करते हैं। इसीलिए प्रोग्राम्स के नाम हमारे लड़कियों के सुझाए हुए प्रोग्राम के नाम है मुस्काती बेटियां, मेरी खुशी, हमारी खुशी, आपने लाडली ने स्कूल भेजो, आपने डिक्री रोहक अभियान। तो इस तरह के सारे प्रोग्राम जो है गर्ल्स के साथ बैठकर सेल्फ एम्पावरमेंट पे लड़कियों के छांटे हुए नाम के हमारे हैं। और हमारा ये एक है कि कैसे हम सेफ स्पेस लड़कियों के लिए क्रिएट कर पाए, जो भी कृति ने भी बोला है कि किस तरह से हम सेफ स्पेस को हम कर पाए, तो तभी हम लड़कियां अपनी बात रख पाएगी, चीजें कर पाएगी। और सारे जो हमारे साथ लड़कियां जुड़ी हैं, हमारी एक बहुत प्रॉमिस होता है, सब लड़कियां खुद से प्रॉमिस करती है, खुद से शपथ लेती है, सेल्फ प्रॉमिस करती है, सेल्फ कमिटेड होता है वो कि जो लड़कियां हमारे साथ जुड़ी है वो लड़कियों का बाल विवाह नहीं होगा, कोशिश करेगी वो उसके लिए एक्शन लेगी, शिक्षा से नहीं ड्रॉप आउट हो पाएंगी और बाल मजदूरी नहीं जुड़ेगी और हिंसा नहीं सहेगी। ये 4 प्रोमिसेस लड़कियां खुद सेल्फ करती है और फिर इस पे जो भी हर्डल्स आते हैं उनको वो पार करने का कोशिश करती है और सपोर्ट लेती है। प्रोग्राम्स हमारे जो अलग अलग इन लड़कियों के इन सारे कामों को कैसे हम लड़कियों को तैयार करते हैं, तो एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट, क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, आप हम सब भी जो आज इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं सबको लगता है एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूरल रिमोट एरिया में लड़कियों की शिक्षा छूट जाती है, तो हम पहला कोशिश होता है कि उनको मेन स्ट्रीम करें, और नहीं तो फिर हम उनको ओपन से शिक्षा जोड़ के हम उनको पढ़ाते हैं और फिर उनको शिक्षा में मेन स्ट्रीमिंग करते हैं। दूसरा एक स्पोर्ट्स फॉर एम्पावरमेंट हमारा एक प्रोग्राम चलता है, क्योंकि लड़कियां खेल तक इन आउटडोर गेम्स में नहीं जा पाती है। आउटडोर गेम्स बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी देता है टीम लर्निंग की, फियर, बॉडी फियर ब्रेक करने की, इमोशन कंट्रोल करने की, और हार जीत जिंदगी में होती रहती वो सब करने की एक बहुत बड़ा स्पेस देता है, एक तरह से चीजों को बड़ा सपना दिखाता है। तो स्पोर्ट्स फॉर एम्पावरमेंट हमारा प्रोग्राम, वॉलीबॉल और कबड्डी हम खेलते हैं क्योंकि ये दोनों मैस्कुलाइन गेम माने जाते हैं, मर्दानगी वाले, तो इन दोनों गेम से लड़कियां जुड़ती है। तीसरा हमारा कलेक्टिव फॉर एम्पावरमेंट, लड़कियों के ग्रुप्स बनाना, क्योंकि वो कलेक्टिव्स एक दूसरे को स्पेस देते हैं, मंच देते हैं, बात रखने का अवसर देते हैं। और एक चौथा जो है प्रोग्राम स्किल फॉर एम्पावरमेंट, स्किल को भी हम एम्पावरमेंट से देखते हैं कि कैसे वो एम्पावर हो पाए इन सब चीजों को लेकर के। और जब लाइफ स्किल्स का एक बड़ा काम हम करते, लाइफ स्किल में जो अभी बाकी साथियों ने भी बोला, सारी चीजें हम सिखाते हैं। पहला है कि ड्रीम देखें, ड्रीम है उनके पास लेकिन वो ड्रीम देखे, फिर उस ड्रीम के लिए वो कैसे सेल्फ अवेयर हो पाए, सेल्फ अवेयर होकर किस तरह से वो डिसिप्लिन रहे, क्योंकि ड्रीम तो देख लिया लेकिन डिसिप्लिन कर पाए, एक तरह का टाइम मैनेजमेंट कर पाए वो चीजों को लेके, और नेगोशिएट कर पाए अपनी फैमिली के साथ। हर समय संघर्ष तो है लेकिन कैसे एक अलग अलग तरीकों से, वही जानती है उसकी फैमिली में कैसे नेगोशिएट कर पाती है, तो वो नेगोशिएट कर पाए अपनी फैमिली में, डिसीजन ले पाए और एक कमिटमेंट दिखा पाए इन चीजों को लेकर के, और राइट चॉइस ले पाए वो सारी चीजों को। ये हम लड़कियों को लाइफ स्किल में सिखाते हैं। और फियर ब्रेक हो बॉडी का, फियर ब्रेक हो आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूंगी, ये फियर ब्रेक करने की हम लड़कियों के साथ बात करते हैं और उनको हम सिखाते हैं कि ये सारी चीजें आप करें आगे तभी है। और स्किल्स में हम उनको सिखाते हैं, कैंप लगाते हैं हमारे, हम अभी तो कोरोना हो रहा है लेकिन समर वेकेशन में हमेशा कैंप लगाते हैं, इसमें कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग और सेल्फ डिफेंस, जो पुलिस कमांडोस आके सेल्फ डिफेंस सिखाती है, हमारे साथ टाई अप है पुलिस का। तो ये तीनों चीजें भी हम स्किल्स में लड़कियों को सिखाते हैं। जब वो ड्रीम देखे, क्योंकि ड्रीम अभी अधिकतर उनका रहता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, टीचर, तो हम एक्सपोजर स्ट्रिप्स जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं लाइक उनके साथ हम डायलॉग्स करवाते, चाहे आईपीएस है, आईएएस है या इंजीनियर है, पायलट है, पायलट, इन सब के साथ हम अलग अलग। तो अब लड़कियों के ड्रीम कोरियोग्राफर, डांसर, लेखक, कमांडो, पुलिस, पायलट, कलेक्टर, ये सब होने लग गए हैं, जो एक काफी अच्छा लगता है। और इशू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग भी हम उनको साथ साथ देते हैं, चाहे कानून की हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हो, चॉइस ऑफ सेक्सुअलिटी की हो, इन सब की चीजें भी हम उनको देते हैं। एक बहुत जरूरी है कि ये सब तो नॉलेज दे दिया, लेकिन सपोर्ट स्ट्रक्चर क्या है उनके, अगर कोई प्रॉब्लम आए, व्हाट इज द सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर देम, तो उन सपोर्ट स्ट्रक्चर की विजिट हम कराते हैं, दिखाते हैं उन सपोर्ट स्ट्रक्चर को उनको, और जानकारी देते हैं कि यहाँ जाके आप बात कर सकती हैं। पहला हम कोशिश करते हैं लड़कियां खुद आवाज उठाए,
क्योंकि हर्डल्स लाइफ में एक बार नहीं आता, बार बार हर्डल्स आते हैं पूरी लाइफ में। तो अगर वो सेल्फ एक्शन लेगी, हम उसको बताते हैं 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ये आप लीजिए अपना स्टेप, क्योंकि आप कभी भी हर्डल, फिर अगर है तो हमें, जैसे एक लड़की की उस गांव में 8वीं से ऊपर कोई लड़कियां नहीं पढ़ी संतोष की फैमिली में, तो गांव में नहीं पढ़ी, 8वीं से आगे स्कूल नहीं था, कोई नहीं जाते, तो उसको भी जाना था, उसके भाई जा रहा था, उसको नहीं भेजा, उसने 4 दिन तक खाना नहीं खाया, उसने कोई तरीका नहीं सूझा उसको, उसने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी अगर आप मुझे स्कूल नहीं भेजेंगे। तो उसके पापा ने 5वें दिन उसके भाई को बोला, अरे ये मर जाएगी, इसको लेके जा, इसको एडमिशन करा। तो एडमिशन हो गया, अभी वो बीए में पढ़ रही, IIT उसने कर ली है। उसके बाद गांव की 5 लड़कियां 10 लड़कियां और अब निकल के आगे जा रही है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स लड़कियां खुद क्रिएट करती है चीजों को लेने के, आगे जाने के। और इसके साथ हम लड़कियों की लीडरशिप बिल्डिंग बढ़ाते हैं कि वो लीडरशिप ले, सेल्फ एज एजेंसी लीडरशिप ले, कम्युनिटी लीडरशिप ले और एडवोकेट कर पाए। जो बीत ने भी बोला कि एडवोकेट देमसेल्फ, एडवोकेट खुद को कर पाए, खुद के बारे में कर जाए। और इन सब सपोर्ट के लिए हमारे पास एक हेल्पलाइन है, जिस हेल्पलाइन पे हम लड़कियों के भी, महिलाओं के लड़कियों दोनों के लिए है। तो हेल्पलाइन पे हम लड़कियों के केसेस भी लेते हैं, जिसमें चाइल्ड मैरिज, सेक्सुअलिटी अफेयर, दोस्ती, जबरदस्ती, हिंसा, इन सब के केसेस भी हमारे पास काफी सारे आते हैं। और इन सब चीजों से लड़कियां स्टीरियोटाइप ब्रेक कर पाती है, सोशल नॉर्म्स ब्रेक कर पाती है और अपॉर्चुनिटी अपने लिए खोल पाती है और बहुत सारे सपने देख पाती है। इनमें हमें जो सीख, बस टाइम होने वाला है, सीख जो बनती है इस लर्निंग्स भी पल्लव, तो सीख हमारी जो बहुत बड़ी बनती है कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है, चाइल्ड मैरिज वैसे वैसे रुकती है, एक ये लर्निंग बनती है। दूसरी है कि स्कूली शिक्षा के अलावा सोशल इमोशनल लर्निंग और लाइफ स्किल की अगर हम नॉलेज देते हैं, ये जानकारी देते हैं, तो फिर भी चाइल्ड मैरिज रुकती है और फोर्स मैरिज भी रुकती है। और ये एक बड़ा, क्योंकि खाली स्कूली शिक्षा काफी नहीं है और 18 भी कोई मैजिक एज नहीं है कि मैं 18 की हो गई मेरा सब कुछ आ गया। लेकिन ये दूसरी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें हम दे तो एम्पावर हो पाए। और जैसे ड्रॉप आउट होगी चाइल्ड मैरिज बढ़ेगी, इसलिए हमने कोशिश किया कि अगर मेन स्ट्रीम नहीं हो तो ओपन के फार्म भरवाएं, और जो नहीं पढ़ पाती थी 10th 12th में उनको ओपन के से जोड़ा और फिर उनके लिए सेंटर्स खोले जहां 3-3 घंटे उनको पढ़ाया। तीसरी लर्निंग जो हमारी रही कि यंग मैरिड गर्ल्स की जो स्थिति है काफी खराब है, काफी स्थिति इस तरह की है, उनके बच्चे हैं, बच्चों का वो टाइम नहीं दे पाती है, सब चीजें दे पाती है, तो कैसे हम यंग मैरिड गर्ल्स के साथ भी काम करें। और उन्होंने कहा कि हमारे पतियों के साथ भी काम करो। तो फिर हमने पति पत्नी दोनों को, यंग मैरिड कपल्स को मिलाकर के उनकी वर्कशॉप्स करना शुरू किया, जहां हम चॉइस, कंसेंट, सेक्सुअलिटी, डिसीजन मेकिंग, जॉइंट ड्रीम, इन सब पे बात करते हैं। और आप बिलीव करेंगे, जिनकी 8-8, 10-10 साल पहले शादी हुई, हम जो उनके साथ वर्कशॉप करते हैं तो उनको पूछते हैं कि अच्छा, अलग अलग पूछते हैं, पति का सपना, पत्नी का सपना, दोनों को क्रॉस सपना बताने होते हैं। मैंने स्लाइड नहीं थे तो मैं दिखाती, उनके हाथ में होता है कि पता नहीं, पता नहीं, 10-10 साल की मैरिज हो गई, लेकिन दोनों को एक दूसरे के सपने, ड्रीम नहीं पता होते हैं, कोई जॉइंट प्लानिंग नहीं होती है। तो वो हम सब उस कपल वर्कशॉप्स में सिखाते हैं। और काफी सारी चुनौतियों का जो है कि सामना करना पड़ता है हमें इन सब चीजों में। इतना जितना मैं कह पा रही हूँ इतना आसान नहीं है। कोई भी लड़की अगर अपनी इन सब सिखाने के बाद किसी भी तरह की चॉइस लेती है, अपनी मर्जी से कहीं जाती है, तो पूरे के पूरे ग्रुप टूट जाते हैं। ब्लेम हम पे आता है कि आपने लड़कियों को सिखाया है इसलिए लड़कियां अपनी चॉइस ले रही है और अपनी मर्जी से शादी कर रही है, ब्लेम हम पे आता है। कोई चाइल्ड मैरिज गांव में रुकती है पुलिस या किसी के सपोर्ट से, तो भी ब्लेम हम पे आता है कि आप पे ही बाल विवाह रुका है, आप ही हमारी संस्कृति को ब्रेक कर रहे हैं, हमारे नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं, आप घर बिगाड़ने वाली महिला है। FIR के धमकी देते हैं कि आपने ऐसा हुआ तो हम आपके ऊपर FIR कर रहे हैं। हमने कहा कर लो भाई, FIR भी कर लो, ये सब भी है। तो इस तरह की धमकियां भी हमें बहुत सारी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियां सपने देख रही है, लड़कियां आगे से आगे आ रही है, कोशिश कर रही है। और मैं इसी पे जो है कि जो आपकी, चाहे आपने जो प्रेजेंट किया पल्लवी या कृति ने प्रेजेंट किया या और सभी साथियों ने जो प्रेजेंट किया है, उसी पे मैं बस एक कमला भसीन जी की ही कविता जो अपनी सब लड़कियों को डेडिकेटेड है, सारी ही अपनी लड़कियों को, जो आपने भी कहानी बताई, मैंने बताई, बाकी साथियों ने। हवाओं सी बन रही है लड़कियां, उन्हें बेफिक्र चलने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं है बेवजह रोका जाना। हवाओं सी बन रही है लड़कियां, फूलों सी बन रही है लड़कियां, उन्हें महकने में बड़ा मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं है बेदर्दी से कुचला जाना। परिंदों सी बन रही है लड़कियां, उन्हें बेखौफ उड़ने में बड़ा मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं है उनके परों को कटा जाना। हवाओं सी बन रही है लड़कियां, पहाड़ों सी बन रही है लड़कियां,
उन्हें सर उठा के जीने में बड़ा मजा आता है। उन्हें मंजूर नहीं है सर को झुकाकर जीना। हवाओं सी बन रही है लड़कियां, सूरज सी बन रही है लड़कियां। उन्हें चमकने में बड़ा मजा आता है। उन्हें मंजूर नहीं है पर्दों से ढका जाना। हवाओं सी बन रही है लड़कियां, हवाओं सी बन रही है लड़कियां। ये अपनी सब लड़कियों को डेडिकेटेड है और इसी तरह से लड़कियां सारे एक्शन लेती रहे, बाल विवाह रुकवाती रहे। अभी तक हम 20,000 से ज्यादा बाल विवाह रुकवा पाए हैं। और बाल विवाह मतलब पुलिस का जा के नहीं, हम लोग जो लड़कियां हमारे साथ जुड़ती है उनके कमिटमेंट से 20,000 से ज्यादा बाल विवाह रुकवा पाए। 30,000 से ज्यादा लड़कियों को हम हायर एजुकेशन से जोड़ पाए हैं और 6,000 के हम लड़कियों और महिलाओं जो हिंसा का सामना करें उनके केसेस पर हम मदद कर पाए हैं। ये अभी हमारे साथ 5,000 लड़कियां जुड़ी हुई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू उषा जी, बहुत ही अच्छा किया आपने कि एकदम श्रद्धांजलि देते हुए कमला जी से शुरू किया और उन्हीं पर आकर खत्म किया। आप लोग इतना इंस्पायर करते हैं हम लोगों को काम करने के लिए और इतने आपके अलग अलग एक्सपीरियंसेस जो है उससे आई एम श्योर हमारे अलावा जो लड़कियां हैं उनके लिए भी सीखने के लिए है और बाकी सबके लिए। थैंक यू सो मच उषा जी। Thank you, Pallavi, for giving me this opportunity. Of course. Our next speaker is Dr. Geeta Mehta. She is an adjunct professor of architecture and urban design at Columbia University and the founder of Asia Initiatives, a non-profit organization with a mission to help communities help themselves. Geeta ji is the innovator of social capital credits, SOCs, a community currency for social good that is being used in USA, India, Ghana, Kenya to incentivize communities to improve their neighborhoods and well-being. She was recognized as one of the 21 leaders of the 21st century by Women's E-News and by HSBC Bank as a social entrepreneur of the year in 2017. Over to you, Geeta ji. Thank you so much. मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आज मैंने बहुत कुछ सीखा। इतनी इंस्पायरिंग स्पीकर्स बहुत ही मेरे को अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ SCS को कि इतना अमेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया है आपने अक्टूबर फेस्ट के लिए, तो बहुत ही थैंक यू। तो मैं एक छोटा सा पावर पॉइंट दिखाना चाहूँगी। आई होप दैट इट्स गोइंग टू वर्क। और मैं एक इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी कि निधि मेरे साथ हैं, निधि टंडन, वो हमारी एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है। निधि, आपका नाम अभी गीता मेहता चल रहा है, आप चेंज कर लीजिए। तो ठीक है, लेट मी जस्ट ट्राई टू शेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। Pallavi, my screen is disabled, my share is disabled. Can you make me a co-host? Okay, I think I can share now. Let me see. Yes, I can share. सबको दिखाई दे रहा है? Can you see? Good, good. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम एशिया इनिशिएटिव है। 20 साल हो गए हैं शुरू किए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो 2021 में इंडिया का रैंक जो निकला है इन ग्लोबल जेंडर गैप, अनबिलीवेबली वी आर नंबर 140 आउट ऑफ 156। ये हम 75 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा रैंक इतना ज़बरदस्त लो है ये कि इसलिए जो आज सेमिनार हो रहा है, जो आज कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी, आई वांट टू से दैट somehow in dealing with girls, everybody is prioritizing money, right? So I think before also Sabika said that you know, parents would like children even from very small age to learn about or make a goal of making more money, and that's actually a problem, right? Because what is a community's wealth? What is a person's wealth? It's not just money, it's about the ecological capital and social capital. Social capital माने कि what is your ecosystem? आप किस ecosystem में
बढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, काम कर सकते हो, अपनी लाइफ अच्छी तरह स्पेंड कर सकते हो। तो ये हमने सोच के अपना जो एनजीओ बनाया है, और उसमें हम सोशल कैपिटल क्रेडिट्स को बहुत ज़्यादा, सोशल कैपिटल को बहुत ज़्यादा उसमें एम्फेसिस देते हैं। तो मैं एक जल्दी से अपना एक इंट्रोडक्शन दूंगी, हम क्या क्या काम कर रहे हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट है कास्केड ऑफ लर्निंग, जो SES के साथ हम कर रहे हैं। हम अफ्रीका में भी, गाना, केन्या में कर रहे हैं। तो उसमें कास्केड ऑफ लर्निंग में क्या रहता है कि older girls and adolescents, they tutor younger people 3 years or more younger than them, and they earn social capital credits. Social capital credits is our community currency for social good. आप ये देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि children or young adults, they take the responsibility of meeting with 2 or 3 young people every week and helping them with homework, helping them stay and succeed in school. तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है उसमें एक टीचर है तो 60 स्टूडेंट्स है, 1-to-1 तो हो ही नहीं पाता, और बच्चों को और भी कुछ हर्डल्स होती हैं, उनके पेरेंट्स लिटरेट नहीं है या कोई भी है। तो इसमें भी काफ़ी ये मेंटरशिप का जो हमारा मॉडल है, इसमें इट हेल्प्स अ लॉट। Then what happens is that you do, so twice or thrice a week, you are teaching or tutoring or supporting or mentoring younger people to stay and succeed in school. You earn social capital credits that go into your app, and then you can redeem them for school fees, college fees, or learning as an SES program, learning coding, learning programs for Global Glow. Global Glow हमारा पार्टनर है with SES, and Kids Who Code हमारा पार्टनर है in teaching coding and digital skill. So you can learn all that and then go on to a better job. So all our programs start with Socratic dialogue. Socratic dialogue क्या है? Deep listening. कि ये नहीं हम कहते कि हमको सब चीज मालूम है, we will tell you, but instead we say that let us sit together, you tell us what you think your hurdles are and how do you think you can overcome that. So adolescent girls are very deeply involved in creating the earning menus and redeeming menus. The earning menu में usually है कि mentorship है, उसके बाद read to volunteers and give homework help, and then redeeming में college fees है, other things है। तो ये हमारा प्रोग्राम है, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ओल्डर गर्ल्स बच्चों को स्कूल में सक्सीड होने के लिए मदद करती हैं। And this is actually very powerful, because when a girl is walking through a village or community, she's just a girl. But once she starts doing that, she gets called a teacher, right? So suddenly she has so much more respect in the community, and she has agency that, yes, I can help others just like others are helping me. Older children are helping me. And we are very big on digital empowerment, because in India, to get a job, you have to absolutely be able to speak some level of English and know computer. So our girls are doing that. And then in some of our projects, we are also teaching karate. जैसे अभी उषा जी ने बोला that gender violence has many layers, and she also talked about sports as a way to give girls the power. And so in some of our projects, girls are redeeming their socks for karate classes, and really bringing joy into the life, because somehow our social ecosystem is so suppressive of girls that it's really quite unfair. But it's not just a problem in our country, it's actually a problem in many developing countries, which is why they're not developed. If you keep 50% of your population down, what kind of development are you expecting? And in this project, girls redeem their socks for bicycles, and that suddenly enabled them to go to school. And Asia Initiative funds the redeeming menu in all cases. As I said, technology is a very big issue, and we try to bring that to our children. We have computer network knowledge centers with SES. Sandeep ji, abhi kitna 15 or more we have with SES, and then we have with other projects also.
And so we are harnessing technology and community for demand-driven, flexible, formal, informal education. And at all levels, SEL is integral. Now I'm going to introduce Nidhi Tandon, she has a doctorate in education and she's our advisor and she has created these modules. So Nidhi, can you please explain a little bit about how our modules relate to SEL? Over to you, Nidhi. Yeah, thank you so much, Geeta. So hello, everybody. Actually, let me just give you a little bit of background of how these modules started. So Geeta and I were already discussing the possibility of introducing virtual learning for the students at Lucknow. And so when the COVID pandemic, hit us, and we had to suddenly all shift towards virtual learning, and we realized that, instead of thinking of it as a hindrance, we considered it as, we had new solutions in our hand, new techniques in our hand to help the girls out who couldn't be in school at that time. And at the same time, despite, the availability of technology, we also realized that these remote learning was also presenting, additional challenges. How do we keep the students meaningfully engaged? Or how do we increase their interest or motivation, because there's so much of disturbance going on when they are, taking these lessons from their class. You have neighbors showing up in the background and, all of this noise. So, all of these factors we were taking into account because, a part of learning is also the emotional and the mental aspect of learning. So a core part of our approach in implementing the SOC Buddies learning module at Asia Initiatives has always been to incorporate a reflexive exercise, basically think back at what you learned. You attend a Zoom module and we are aware that just simply, attending a Zoom is not enough. It is more important to effectively, leverage this technology for interacting more with the students. So, we did try to engage the learners asynchronously by supplementing the online modules with, some engaging activities that they could do over the week. And the purpose of these activities were basically to reinforce the concepts that were introduced in the online Zoom modules. And so, we provided these students with learning materials that included simple things like, reading stories, creating art projects, scavenger hunts. And students also had a choice to reflect on their learning by completing these simple tasks. And so this actually provided them with avenues to express what they have learned through the medium of art, through the medium of writing, just self-expressing themselves. And so we realized that, the learning outcomes of self-expression for the students also provided us an important insight into their hidden talents. Because I remember Satyanshuji was, sharing pictures of some of the wonderful artwork that the students had done, or, some of the other videos that they were sharing, which otherwise we would have not been, we would have missed all of this, if we had just stuck to Zoom. So yeah, we try to, include all aspects of a child's development. And so I think that's what makes our program much stronger. Thank you. Thank you, Nidhi. I just want to give a very quick example of what our girls have been able to do in terms of, where does SEL lead them. And we have a program called Observe, which is also taught through our SOC Buddy program. We have about 30 volunteers in US and UK and other places who are actually getting on Zoom calls and helping children learn spoken English. But in this case, they were also learning citizenship skills. And a group of girls in a very low-income community there, through citizen journalism and through interviews, they articulated that their street was really dirty, the drains were not being cleaned. So they made a presentation and they took it to the municipal office and they made their presentation, and the commissioner was so impressed that immediately next day the street was cleaned, and he gave them, or she, I think, gave them the phone number and said, if in future there's a problem, just call me. They were so impressed. So in this way, I think we are empowering girls
in more ways than just learning, written or succeeding in school. Their social and emotional learning is so important. And the last thing I want to just say is how it really takes a village to educate a child. So the whole ecosystem actually in India is so oppressive for a girl child that, India's GDP and economic growth could be maybe 5-6% higher. We could really blossom, but what is holding us back is this whole ecosystem that suppresses the potential of 50% of our population. I mean, how ridiculous is it to try to drive a car with 2 wheels, right? Which is what we are trying to do. 2 wheel to puncture kar diye, है ना? फिर बोला कि गाड़ी ठीक से नहीं चल रही. Of course ठीक से नहीं चल रही. So I think everybody on this call who has presented, I'm just so in awe of this. I'm just so grateful to everybody for what you are doing. And आपने उषा जी ने child marriage की बहुत ही अच्छी बात की. I would love to be in touch with you, Usha ji. I'm going to put actually my email in the chat later on for anyone to contact us. But उषा जी ने child marriage की जो बात की, तो हमारे projects में भी we actually ask mothers and fathers to take an oath against child marriage. And for taking that oath, they earn social capital credits that go into the account and can help the child learn other things. And if the women they bring their mother-in-law, usse unko double socks, because that is like such a big crime actually, to just nip a child's potential so early on in life. And so the girls, we have to make the girls so super strong so as to be able to just counter the barrage of negativism that comes in the way. I'm an architect, urban designer, and our cities are not designed for girls, right? So no matter how brilliant the girl is, agar wo graduate ho jati hai, she cannot take public transportation to go to job because it's not safe. What is this? I mean, this is really criminal, and we have to just, जितना ज़्यादा burden है girls के, हमको उतना ज़्यादा ही push करना है कि कैसे हम, make strong girls for a strong country. So with this, I would just like to express my deepest appreciation to everybody who has spoken so far, and to SES, and for organizing this. I'm really grateful. And I'm going to put my email in the chat, so anybody, I would just love to communicate with all of you. I think this this kind of a seminar should happen very much more often. Sandeep ji is listening, so please, this is just so amazing, the group you've made. Maybe you can put us all on a WhatsApp so we can communicate our ideas with each other. That would be great. So thank you very much. Back to you, Pallavi. Thank you so much, Geeta ji. I think whatever you have emphasized on couldn't have been said better the way you had put it. So fortunate to be able to be here and listen to all your insights. Thank you. I will quickly move on to our next speaker, and I would request our participant to mute themselves, please. So our next speaker is Swecha. Swecha has donned many hats, from being a Kathak dancer, theatre artist, to finally becoming a life coach and storyteller. Based out of Delhi, she has worked with more than 2,500 children over the years across a diverse range of schools and NGOs. She has ample experience handling anger management, bullying, and boosting self-confidence. She strongly believes in instilling core values of emotional intelligence and life skills in children via storytelling. She will be taking us through the importance of understanding emotional intelligence and how storytelling becomes a tool of managing emotions, imparting knowledge, and recognizing values. Over to you, Swecha. Look forward. Good evening, namaskar everybody. अभी समय लिमिटेड है, पर शुरू करने से पहले जो कहना था वो सब कुछ जैप आउट हो चुका है, क्योंकि मैं इतनी देर से जो इतना अच्छा सुन रही हूँ, मतलब आई एम सो ओवरवेल्म राइट नाउ, अपने इमोशंस को काबू नहीं रख पा रही हूँ.
कृति ने जो बोला, उषा जी ने जो बोला, गीता मैम ने जो बोला, रिद्धि मैम ने जो बोला, एंड बेथ, आई मीन द काइंड ऑफ वर्क आप लोग जो कर रहे हैं, अमेजिंग गाइस. और थैंक यू संदीप एंड पल्लवी फॉर थिंकिंग ऑफ मी एंड ब्रिंगिंग मी हियर. आई एम जस्ट अ बेबी हियर. ओके, मैं सिर्फ यहाँ सुनने आई हूँ. मैं वाकई कृति जी अपना बस्ता बाहर रखकर आई हूँ. लेकिन अब इतनी सारी बातें हो गई है, कुछ याद कर रही हूँ कि आज बात क्या करनी थी. थैंक यू कृति जी कैमरा खोलने के लिए. सब लोग झट से अपने कैमरा खोल लीजिए, क्योंकि मुझे चेहरों से बात करने में ज्यादा मजा आता है. इफ यू कैन टर्न ऑन योर कैमरास, दैट विल बी अमेजिंग. ठीक है, तो इतनी सारी हमारे साथ नॉलेज शेयरिंग की गई, क्या क्या लेवल पर सब लोग काम कर रहे हैं, सभी स्पीकर्स ने बताया. तो अभी एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. पल्लवी ने पेन पेपर तो सबके पास रखवा ही दिया है. तो पहले हमने हार्ट बनाया था और अभी हम एक इमोजी बनाएंगे. आप कैसा फील कर रहे हैं अभी, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, उसका एक छोटा सा इमोजी बनाएं और चाहे तो एक शब्द, दो शब्द में लिख दें आप इस समय कैसा फील कर रहे हैं. मेरी तरह ओवरवेल्म है, बहुत एक्साइटेड है, मैं क्या करने वाली हूँ या मैं कुछ बिगाड़ने वाली हूँ, इसके लिए डर लग रहा है, जो भी है कैमराज ऑन कीजिए और सभी लोग फटाफट एंगेज. मतलब हमारे पास लगभग 55-56 लोग हैं यहाँ पर और स्क्रीन पर मुझे सिर्फ 12-13. हाँ ऐसे ही. हाउ नाइस इज दैट. क्विकली, जल्दी से हंसते हुए चेहरे तो दिख रहे हैं. आई एम श्योर इमोजी भी बन रहा है. हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, 1 या 2 मिनट. और अगर कोई ऐसा कर चुके हैं तो प्लीज अपनी स्क्रीन पर उस शीट को रखें और दिखाएं आप कैसा फील कर रहे हैं. हाँ, तो कृति जी ने दिखाया हैप्पी. ओके, पल्लवी कहती हैं, पल्लवी मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, बताएंगी. Hopeful and excited. होपफुल एंड एक्साइटेड. और कोई शेयर करना चाह रहा है? हाँ, संपर्क बता रही है. फीलिंग, मैम आपकी स्क्रीन थोड़ी सी गायब हो गई है, कुछ आप पढ़ के बता दें. उषा जी ने एक बड़ा ही क्यूट सा लाल रंग की, अच्छा लिपस्टिक वाली स्माइल बनाई है. ओह दैट्स वंडरफुल. फीलिंग एक्साइटेड. ठीक है, लक्ष्मी भी कुछ दिखा रही है. लक्ष्मी आप बता दीजिए अनम्यूट करके, मैं नहीं देख पा रही हूँ. अच्छा ठीक है, तो मतलब मामला ऐसा है कि सभी यहाँ पर आकर के एक्साइटेड हैं. ये संदीप और पल्लवी ने जो ये पूरा एक यहाँ पर ये महफिल तो नहीं बोलूंगी, जो एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है SCL. सॉरी मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ और आज बहुत सारी बातें बोलनी है मुझे आप सबके साथ. एक्टिविटी हमने की, कुछ लोगों ने शेयर करा, अभी बात पूरी खत्म नहीं हुई. मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स दूंगी. दाम चारिश तो सबने खेला है ना, वो हम फिल्म का नाम बोलते हैं, एक्टिंग करनी होती है. अभी यहाँ कुछ उल्टा है. मैं लाइन बोलूंगी, आपको एक्टिंग करनी है. ठीक है, आप अपने एक्सप्रेशन से स्क्रीन खुलवाने का, कैमरा खुलवाने का फायदा तो मैं उठाऊंगी ना पूरा पूरा जी. तो कुछ सिचुएशन देती हूँ. मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, कामकाजी हैं. बच्चे भी बहुत काम करते हैं, मेरे घर के बच्चे बहुत ज्यादा काम करते हैं, मैं सबसे बहुत काम कराती हूँ. तो पहला मेरा प्रॉम्प्ट है, You've had a day full of confusions, a very frustrating day, and you reach back home. Beth, you also are participating here. Okay. So you have reached back and the day has been very frustrating and a lot of confusions all through the day. You're supposed to go back home and cook for your family. ठीक है, आप बहुत परेशान हैं, दिन भर बहुत ऊट पटांग चीजें हुई ऑफिस में, आपके काम में. आप घर पहुंचते हैं, घर वालों के लिए खाना बनाना है. आज डोसे की फरमाइश थी, सब कुछ तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही आपने पैकेट देखा, इंग्रेडिएंट्स एक्सपायर्ड हैं. इंस्टेंट रिएक्शन, नॉट थिंकिंग, जस्ट रिएक्टिंग ऑन द स्क्रीन. ओके, आई लव गीता जी's एक्सप्रेशन, दैट्स सो नाइस. ओके ठीक है, उसके बाद नंबर आता है, आप सोने जा रहे हैं. ठीक है, सोने जा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, बेड में you're tossing around in the bed, you're not able to sleep because probably you're only thinking of the day, what has happened, what has transpired the whole day. Then you wake up the next morning, that's the last tube of toothpaste that you have in the house and that's empty. How do you react? Okay, Shubha, that's kind of reaction that I would also do. All right. फिर आती है ब्रेकफास्ट की बारी, जो आपने नहीं बनाया है, घर में किसी ने आपके लिए बनाया है, लेकिन इट्स टू सॉल्टी. नमक इतना ज्यादा है कि वो इनएडिबल है. मुंह में रखते ही
मैं बताऊंगी नहीं कि कैसा फील होता है, आप बताएंगे। बहुत ही बुरा है, मतलब खाया नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफिस पहुंच गए हैं, फिर से काम है। आज एक प्रेजेंटेशन है जिसकी तैयारी में कल का दिन बहुत ज्यादा जैसा भी था हम उसको पीछे छोड़ चुके हैं। आज पहुंच गए। ऑफिस पहुंचते ही मेरे ऑफिस के जो राजू भैया है उन्होंने मुझे चाय पकड़ाई। माई फेवरेट काइंड ऑफ टी, इट कुड बी अदरक इलायची वाली चाय या शायद वो ब्लैक टी और मे बी अ हर्बल टी, वॉट एवर द वे आई लाइक इट। लाइक पल्लवी जब से बैठी है तब से वो सिप कर रही है, कुछ पी रही है, उनकी फेवरेट मग में पी रही है। तो ऐसे फेवरेट मग में आपके पास कुछ आता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? रिएक्शंस प्लीज। हाँ, यही तो चाहिए था, दिस वॉज इट। उसके बाद प्रेजेंटेशन होती है, आपकी टीम बहुत बढ़िया करती है, यू एबल टू क्रैक द डील। वो आप जो आज आप काम करने पहुंचे थे वो आपने कर लिया और आपके जो भी बॉस हैं वो आपकी तारीफ करते थे कि भाई वाह संदीप, आज तो क्या तुमने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, मतलब आपका तो प्रमोशन बनता है, आप ये SES को और दूसरी जगह भी लेकर के जाइए। नाउ हाउ वुड यू रिएक्ट? अब सब तरफ एक ही जैसा रिएक्शन नहीं हो सकता ना, सिर्फ स्माइल नहीं हो सकता, इतने सारे डाइवर्स रिएक्शंस हैं। हाँ ठीक है। इसके बाद आप फिर घर पहुंचते हैं। कल का डोसा आज बनाना है लेकिन इंग्रेडिएंट्स आज भी ले जाना भूल गए। नाउ हाउ वुड यू रिएक्ट? कल के इंग्रेडिएंट्स भूलने और आज के इंग्रेडिएंट्स भूलने में कोई फर्क है? उस रिएक्शन और इस रिएक्शन में कोई फर्क है? है ना? ये रिएक्शंस हम क्यों जाहिर करते हैं? ये क्यों हम बाहर क्यों निकाल पाते हैं? क्योंकि हम चीजों को महसूस करते हैं, क्योंकि ये सब इमोशंस हमारी लाइफ का, हमारी डे टू डे लाइफ का इतना इंटेग्रल हिस्सा है जिन्हें हम साइड कर देते हैं, जिन्हें हम recognize नहीं करते हैं। We don't recognize our emotions, we just push them away। मतलब आए और गए, बस मतलब चल रहा है दिन, बढ़ते जाओ। We never take that pause to reflect, to think what has happened। We never do that। हम यहाँ पर adolescent लड़कियों की बात कर रहे हैं और कृति जी ने ये भी कहा था कि हम अभी भी सीख रहे हैं। It's a fact, हम अभी भी सीख रहे हैं because even now are we emotional intelligent enough? Are we smart enough with our emotions? जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं। We all are a work in progress, है ना? तो जैसे हम सब यहाँ सीख रहे हैं, सो एक छोटा सा बस कोशिश थी माहौल को थोड़ा लाइट करने की। मैं एक SEL एजुकेटर हूँ और जैसा कि मैंने कहा, आई एम जस्ट अ बेबी इन फ्रंट ऑफ आप लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब तारों की टोली और बनेगी अपनी बात और ये सब कुछ सुनकर आई एम लाइक, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी। तो मैं यहाँ बांटना चाहती हूँ सबसे पहले तो अपना पहला एक्सपीरियंस एज एन SEL एजुकेटर। मेरे घर के पास में एक गवर्नमेंट स्कूल है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं पुरानी दिल्ली में रहती हूँ। पुरानी दिल्ली में अक्सर छोटी छोटी गलियों में बहुत छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं और यहाँ एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल में मैं पहली बार गई। मैं किसी को नहीं जानती थी, कोई मेरे पास कार्ड नहीं था दैट ओके आई एम सो एंड सो, मतलब मैं कोई भी नहीं थी। आई वॉज जस्ट फ्रेशली स्टार्टिंग आउट एज अ SEL एजुकेटर एंड आई वेंट अप टू द स्कूल। वहाँ मेरी प्रिंसिपल मैम से मुलाकात हुई। ये बात है 3 साल पुरानी। मैम ने मुझे कहा कि अच्छा आप क्या क्या पढ़ाती हैं आप? तो पहले तो मुझे उनको समझाना कि मैं क्या पढ़ाती हूँ या मैं क्या करना चाहती हूँ। उनका अगला मेरे तरफ इशारा ये था कि देखिए, क्लास 8 तक सबको पास कर दिया जाता है। क्लास 8 तक ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी है कि लड़की लड़का जो भी, स्पेशली ये आप किसी को फेल नहीं कर सकते, होल्ड बैक नहीं कर सकते। लेकिन अभी बच्चे 9th में आ गए हैं, पढ़ते नहीं है, तो आप ऐसा इनके साथ कोई सेशन लीजिए कि ये पढ़ने लग जाए। मैं गई थी फरवरी में, मार्च में एग्जाम्स होते हैं, तो मैं जाहिर है कोई मैजिकल वॉन्ड लेकर नहीं गई थी दैट आई वाज गोइंग टू स्प्रेड सम स्प्रिंकल सम पिक्सी डस्ट एंड सडनली दे विल बिकम academically inclined and they'll start studying। सो मैंने उनसे बहस नहीं करी, पर मैंने सोचा कि शुरुआत करने के लिए एक सेशन लिया जाए। मैं पहली बार जब उन बच्चों से मिली, वो लगभग 45 लड़कियां थी और शुरू के 5 मिनट जब मैंने उनसे पूछा कि हंस के दिखाइए या आई ट्राई टू डू सम आइस ब्रेकिंग सेशन विद देम, तो वो मुझे देखने के बजाय एक दूसरे को देखने लगी कि ये इतनी अजीब चीजें हमसे क्यों करा रही है, ये हमें हंसने को क्यों कह रही है,
ये क्यों कह रही है कि जब तुम उदास होती हो तो तुम क्या करती हो, ये क्यों पूछ रही है हमसे. सो फॉर देम इट वाज सच एन एलियन कॉन्सेप्ट कि ये सोशल इमोशनल लर्निंग क्या होता है, व्हाई शुड वी टॉक अबाउट आवर इमोशंस. सो वो एक डायलॉग शुरू कराना अपने आप में इट टुक अ बिट ऑफ अ टाइम. वो 10 मिनट थे और उसके बाद वो अगले 50 मिनट, क्योंकि उनके पास कुछ फ्री पीरियड्स थे और उनको एक सब्स्टिट्यूशन टीचर नहीं मिल रहा था. आई वॉज लकी इनफ और वहां पर मैं पहुंची और उन बच्चों से मेरा नाता हुआ और आज 3 साल बाद वो बच्चियां अब 12th में आ गई हैं. उनका इट इज नॉट और आज वो प्रिंसिपल मैम भी इस चीज को समझती हैं कि हम यहाँ सिर्फ एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑब्वियसली EQ की बात करें और जब EQ सुधरेगा इवेंचुअली IQ सुधरेगा एंड दैट इज हाउ दे गोइंग टू ग्रो एंड ग्रूम देमसेल्व्स फॉर द चैलेंजेस इन फ्यूचर. सो ये एक छोटा सा मेरा एनेक्डोट और अगेन मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं हूँ, मैं एज अ फ्रीलांसर काम करती हूँ. तो कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी चीजें अपनी सेशंस में डालूं, कभी कहीं कुछ पढ़कर यहाँ से भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, इसमें से कुछ. तो अक्सर मैं किस्से कहानियों में अपनी बातें बताया करती हूँ. तो मुझसे ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि कहानियों में मतलब आप स्टोरी में बता देते हो, वो तो बड़ा ही कैजुअल हो जाता है. तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम एक किताब बच्चे को हाथ में देते हैं ना कि बेटा इसको पढ़ लो, किताब देते ही ना वो अच्छा पढ़ना पड़ेगा. बट जब हम उनको एंगेज करते हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ पर कुछ लोग मतलब स्पेशली जो यहाँ पर मेरे ख्याल स्टूडेंट्स हैं काफी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो इस बात से रिलेट करते हैं कि एक और सब्जेक्ट की किताब बस इंट्रोड्यूस मत कर दीजिएगा. सो कोशिश ये है कि कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से हम ऐसी कई सारी चीजें कर सकते हैं सो दैट वी आर एबल टू इनकलकेट दीज बेसिक ways, basic life skills, basic elements of SEL into them. अच्छा, अब ये बात आती है कि अच्छा इसके लिए पहले स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा. बहुत सारे एजुकेटर्स हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर ये भी आता है कि स्टोरी टेलिंग तो हमसे नहीं हो सकती ना. तो चलिए कहानी भी सुन लेते हैं. मैं भी कोई खासी स्टोरी टेलर नहीं हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी वन. और मेरे साथ आप जुड़े रहिए और कहानी का मजा लीजिए. ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की जो रहती है मुर्शिदाबाद में. इट्स अ फिक्शनल टाउन, मेरी इट्स अ फिगमेंट ऑफ माय इमेजिनेशन. संध्या रहती है मुर्शिदाबाद में और संध्या कुछ मेरे जैसी है बिकॉज शी हैज दिस थिंग ऑफ शी इज अ टॉकथन. मतलब बोलने की इतनी आदत है उस लड़की को कि वो चुप नहीं रह सकती है. वो अपने फैमिली से बात करती है. कृति मैम वो कॉन्वर्सेशनिस्ट है, वो बहुत बातें करती है, वो हर चीज के बारे में बात करती है. ये ऐसी लड़की की कहानी है. तो ये माँ बाप से बात करती है, पड़ोसियों से बात करती है, भाई बहन से बात करती है, दोस्तों से बात करती है और बात करने का इसका सुरूर इतना ज्यादा है कि वो अपने आसपास की चीजों से भी बात करती है. मतलब she even talks to the objects which she has. She has named her utensils and her bed and her cupboard and she just talks. She keeps on blabbering because she feels that there is a connect with everything around her. तो जहां संध्या रहती है that area is a parched land. वहां पानी की बहुत किल्लत है. पानी भरने के लिए वो कुछ दूर अपनी सहेलियों के साथ घड़े लेकर के एक तालाब के पास जाती है जहां पे उसको पानी भरना पड़ता है. अब क्योंकि उसको बोलने की इतनी आदत है तो हर किसी से बात करती है. रास्ते भर ये कुछ लोग जानते होंगे, फेमिलियरिटी होगी कि जहाँ पानी नहीं होता है वहां पे अक्सर वो बड़े बड़े बर्तन लेकर के तालाब के पास जाया करते हैं, वहां पानी भरते हैं. उसका एक अपना कल्चरल मजा होता है. वहां पे सारी बातें होती है, सब कुछ होता है, शेयरिंग होती है. तो संध्या भी वहां जाती है और उसके जैसा कि मैंने बताया शी इवन नेम्ड हर यूटेंसिल्स एंड द अर्दन पॉट्स व्हिच शी कैरीज. उनके भी उसने नाम रखे हैं चटकू और मटकू. तो एक तरफ होता है चटकू और एक तरफ होता है मटकू. और ठुमकती ठुमकती हमारी संध्या अपनी सहेलियों के साथ जाती है तालाब के पास. रास्ते भर खूब बातें, सब कुछ होता है और संध्या का घर अपनी सहेलियों से थोड़ा दूर है. तो वापसी में जब संध्या आ रही होती है तो जब सारी सहेलियां अपने घर चली जाती है तो वो चटकू और मटकू से बातें करने लगती है. तो ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा. पर एक दिन संध्या नोटिस्ड कि चटकू बेचारा थोड़ा दुखी लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है. What is wrong with चटकू? Because he seems to be little dull and not himself. तो संध्या ने पूछा चटकू से, क्यों भैया चटकू, क्या बात है,
आजकल बड़े उदास लगते हो। चक्कू बेचारा थोड़ा घबराया, थोड़ा हिम्मत जुटा के बोला, दीदी ये सब घड़े ना मुझे बेकार बोलते हैं। बेकार? तुम तो कितने प्यारे हो, गोल गोल क्यूट से, मेरे कितने क्यूटली पेंटेड, तुम्हें बेकार क्यों बोलते हैं? दीदी जब तुम वहां पानी भरती हो ना, तुम पूरा पानी भरती हो, घर आने तक पानी आधा ही रह जाता है। ओहो तो क्या हुआ? नहीं दीदी मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद भी नहीं करता। संध्या ने कहा, कौन तुम्हें बुली करता है, मुझे बताओ, कौन कहता है कि तुम यूजलेस हो? ये मटकू, सारे और घड़े बोलते हैं। The stones, the pebbles, the water bodies, and even your friends earthen pots, they all tease me. सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ और मुझे टूट जाना चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। संध्या ने कहा, ऐसा है भैया चक्कू, कल जब हम पानी भरने चलेंगे ना और वापसी में जब मैं तुम लोगों से बहुत सारी बातें करती हूँ, आ जाना जल्दी से और हम कोशिश करेंगे कि मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। ठीक है भाई। चटकू ने सोचा क्या होगा, कल मुझे छोड़ आएगी, मैं टूट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। अगले दिन जब वो वापस आते हैं तो क्या होता है पता है? जिस तरफ मटकू था वहां का लैंड, वहां की जमीन बिल्कुल सूखी, बिल्कुल ड्राई, दूर दूर तक बंजर। और जहां हमारा चटकू था वहां पर उसके पानी के रिसाव की वजह से छोटी छोटी पत्तियां और छोटे छोटे फूल खिल रहे थे। सूखी बंजर धरती में कैसे नन्हे नन्हे पौधे खिल रहे थे जो एहसास दिला रहे थे that there is more to this land just being a parched land। और संध्या ने मटकू को वो लैंड दिखाया, वो हिस्सा दिखाया और बोली, देखा चटकू, ये तुम्हारे हिस्से की जमीन है जो तुमने पानी गिराया, जो तुम में से रिसाव हुआ, देखो वो कैसे जाकर के इस पूरी जमीन को हरियाली दे गया। ये देखकर हमारे चटकू जी हुए बहुत खुश। और एक छोटी सी बात इसमें से जो हमें समझ आई वो ये कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम परफेक्टली नहीं कर सकते, हम एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर नहीं बन सकते, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। पर ऐसा नहीं है ना। वी ऑल हैव दैट लिटिल क्रैक इनसाइड अस एंड फ्रॉम वेयर द लाइट गेट्स इन। सो वो जो हम इम्परफेक्ट होकर के भी अपनी परफेक्शनिज्म को जी सकते हैं। एंड यू नो आई फर्मली बिलीव, एक बहुत कैजुअल सी बात है ये, यहाँ पर जो मैगी हम सब खाते हैं ना, मैं ब्रांड प्रमोटर नहीं, वी ऑल लव नूडल्स, यू नो, मैजिक मसाला। हम सब मैगी बनाते हैं लेकिन सबके हाथ की मैगी अलग होती है ना, दाल भी अलग होती है, मतलब सब कुछ अलग होता है, ठीक है। सिमिलरली वो जो एक मैजिक मसाला हमारे अंदर होता है, यू नो, दैट स्पेशल फ्लेवर दैट वी हैव दैट मेक्स अस यूनिक, why do we forget that? Why do we get into that comparative basis? और उसके पास है तो मैं नहीं कर सकती, क्यों, हम क्यों जाते हैं? So my message to all of you here is that you all are amazing, you know, educators and doing such great work here. और जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं, आप सब भी, you can do so much more than you really think you can. आपके अंदर कितना पोटेंशियल, आपका जो खुद का वो मैजिक मसाला है, उसको बाहर निकालिए, उसकी फ्लेवरिंग को भर भर के इस्तेमाल कीजिए, and you, nobody can stop you to rise and shine. So that would be my bit here. I'm sorry for taking longer if I have. And thank you so much, Sandeep and Pallavi and everybody for listening to me and lighting up the screen with your smiles. That would be all. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Rachel. I think we couldn't have ended on a better note. Before we take questions, I would like everyone, or I would request everyone to turn on your cameras, and I just want to take a group picture because I think we have exceeded time and people have their meetings scheduled. Just सब अपना कैमरा ऑन कर ले, एक बार हम एक ग्रुप पिक्चर लेना चाहते हैं और अपने बाल सब सेट कर लें कि सब अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से 20 more seconds and then I will take 3 pictures. मैं 3 बार बोलूँगी, पनीर, चीज पनीर, और हम लोगों को हंसना है, ठीक है। All right. Or you can do any other action. You can make a heart, whatever you want, कि ये वेबिनार के लिए आपकी जैसी भी फीलिंग्स हैं वो आप एक्सप्रेस करिए इस फोटो में।
All right. 1, 2, 3, go. One more. 1, 2, 3. Cheese. One more. Last. 1, 2, 3, and there we go. Thank you so much. Now I would request who have questions if they want to ask, or I will actually go about and asking the first question. पहला question है उषा जी के लिए. How do girls navigate getting support of families, especially for girls living with in-laws? उषा जी, आपके लिए क्वेश्चन है कि आप लड़कियों के साथ काम करती हैं, उनकी फैमिली से उन्हें किस तरीके का सपोर्ट मिलता है, उनको कैसे सपोर्ट मिलती है, सपोर्ट स्ट्रक्चर्स कैसे है, स्पेशली उनके इन-लॉज के कॉन्टेक्स्ट. ये यंग मैरिड गर्ल्स के लिए है ना, इन-लॉज के यहाँ से रहती है जी. हाँ, तो जो इन-लॉज के यहाँ जो लड़कियां रहती हैं उनसे बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में तो, बट बिकॉज ये लड़की कहीं ना कहीं इन परिवारों की महिलाएं यानी उन लड़कियों की सास और उन लड़कियों की जो सिस्टर इन लॉ होती, ननद भी हमारे साथ जुड़ी होती है. तो इस तरह से हम धीरे धीरे उनके साथ एक स्पेस बनाते हैं, और जो पहले दरवाजे खुलते हैं तो हम उनको किसी तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सेशन और शिक्षा से जोड़ने का पहला काम हम कोशिश करते हैं कि ओपन से जोड़ते हैं. तो धीरे धीरे वो स्पेस बनकर उनकी मदर इन लॉ को हम महिलाओं के ग्रुप में जोड़ते हैं, जिससे थोड़ा स्पेस बन पाता है, और फिर उनके पतियों के साथ भी काम करते हैं. तो थोड़ा बहुत ये बात चुनौती वाला है, लेकिन इससे हम काफी लड़कियों काफी शादीशुदा यंग मैरिड गर्ल्स तक हम पहुंच पाए, उनके सास और पति और फैमिली के साथ काम करके. और अभी हमारे साथ लास्ट ईयर 250 गर्ल्स ने ओपन के फॉर्म भरे थे, जिसमें से 60% यंग मैरिड गर्ल्स थी जो इन-लॉज के साथ रह रही हैं. तो लगभग 150 शादीशुदा लड़कियों ने फॉर्म भरे थे ओपन के. तो ये भी एक स्पेस होता है जहां हम उनको बुला पाते हैं उनकी पढ़ाई के लिए. तो एक बहाना है एक तरह से कि भाई पढ़ाई के लिए आ गई, फॉर्म भरने के लिए आ गई, और उसको 3 घंटे उस सेशन के लिए आ गई पढ़ाई के लिए. तो ऐसे हम अपनी दूसरी बातें भी उसके साथ कर पाते हैं, ड्रीम और बहुत सारी चीजें. थैंक यू सो मच उषा जी. अब मैं एक्चुअली डायरेक्टली बोलूंगी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके कैमरा ऑन करके डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. दिस इज जस्ट अ प्लग इन दैट इफ एनीवन हैज क्वेश्चंस ऑन the webinar, we would request you to turn on your camera and please just speak out your questions yourself. We would love to put a face to the question, like always smiles. हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्नेहा है. मैं सौरभ सोसाइटी में कोवर ग्रुप के साथ काम करती हूँ. और मैं अभी रिसेंटली 1 साल से जॉब कर रही हूँ, बच्चों के साथ काम करती हूँ. लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े, लोगों ने हम लोगों को बहुत ऐसी चीजें बताई जो हमारे काम करने में अब मुझे बहुत मदद मिलने वाली है. मैं बस एक ही छोटा सा क्वेश्चन है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो हमारी बच्चियां समझती हैं लेकिन वो समाज में या अपने घर पे वो नहीं बोल पाती, वहां पर आकर हमारे सेफ स्पेस में वो बात तो करती हैं, बट हम उनको उतना मोटिवेट शायद अभी नहीं कर पाते हैं कि वो समाज को उस बात को बोल पाए. तो मैं आपसे एक राय चाहती हूँ कि मैं उनको कैसे मोटिवेट कर सकूँ, कोई ऐसी ट्रिक जो उनको और अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ और अच्छे से उनको उस बात को कहने के लिए तैयार कर सकूँ. तो मैं चाहूंगी आप में से कोई भी मुझे इस चीज के बारे में बताए. आप सब लोगों की बातें बहुत ज्यादा अच्छी थी और बहुत मुझे प्राउड फील होता है कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी ऐसी चीजों कर रहे हैं. हम लोगों के लिए इतना कुछ सोचते हैं, बट बारी हमारी भी है, हमें भी कुछ करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है. तो मैं अपने सवाल का जवाब चाहूंगी कि हम कैसे कर सकते हैं ये चीज. थैंक यू सवाल के लिए. और सही बात है ये, मतलब समाज के अपने लिए तो थोड़े छोटे निर्णय लड़कियां ले पाती है, लेकिन समाज के सामने और परिवारों के सामने कैसा हो. तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके तहत आप लड़कियों को, जो हम बात कर रहे थे सब लोग सेल्फ एम्पावरमेंट करने की और अपनी बात को धीरे धीरे रखने की. तो क्या होता है कि
अलग अलग चीजों से कॉन्फिडेंस आता है। आपने उनकी वर्कशॉप की, उनको नॉलेज दिया, उनको कई डायलॉग करवाया पुलिस ऑफिसर्स के साथ, या कभी पेरेंट्स के साथ डायलॉग करवाया। हम काफी बार करते हैं कि लड़कियां कुछ प्रेजेंट करती है तो उनके पेरेंट्स को ही बुलाते हैं, तो उनके सामने वो प्रेजेंटेशन करती है कि मेरा ये काम है, इस तरह का है। और अलग अलग जब अलग अलग चीजों से जोड़ते हैं, एक्सपोजर्स देते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो हिम्मत आती है कि जब, क्योंकि उसकी पहले उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो नेगोशिएट करना सीखेगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, उसका एक तरह से राइट चॉइस बनेगी, तो वो उसके प्रति कॉन्फिडेंट होगी। और उसको पता होगा कि अगर मैं कोई वॉइस रेस करती हूँ तो मेरे पीछे सपोर्ट स्ट्रक्चर खड़ा है। सपोर्ट स्ट्रक्चर लड़कियों के ग्रुप का है, सपोर्ट स्ट्रक्चर संस्था का है, सपोर्ट स्ट्रक्चर दूसरे चीजों का है। तो फिर उसको जब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो वो लड़की अपनी बात परिवार के सामने रख पाती है, और परिवार जब थोड़ी सी उसकी बात सुनता है तो उसका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता है, तो फिर वो अपनी बात समाज के सामने भी रख पाती है। तो ऐसे ये स्टेप हैं, पहले खुद से बात करेगी, फिर समूह में करेगी, फिर ऑफिसर से करेगी, फिर फैमिली में रखेगी, और उसके बाद समाज के सामने रखेगी। तो ऐसे हम लड़कियों को मजबूत करते हैं और एम्पावर करते हैं कि वो छोटे छोटे स्टेप लेके, हमारी एक लाइन है, टैगलाइन, स्मॉल स्मॉल एक्शन कैन मेक ए बिग डिफरेंस। तो छोटे छोटे एक्शन लेके वो बड़े एक्शन तक पहुंच जाती है। उम्मीद है मैं दे पाई कुछ सही आपकी। हाँ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इस चीज पे काम भी करना चाहती हूँ और आगे भी चाहती हूँ कि मैं उनके लिए काम करूँ। और अच्छा लगा, आपने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया। मैं बच्चों के साथ ये जरूर करूंगी, पेरेंट्स के साथ उनकी बात जो है उनकी शेयरिंग में करने की बहुत कोशिश करूंगी कि मैं उनकी बात उनकी पेरेंट्स तक छोटे छोटे तरीके से पहुंचा पाऊँ। मैंने मेरे नंबर चैट में डाले हैं, तुम कभी भी मुझे फोन कर सकती, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा सोचना है 100 ऑफ फायर ब्रिगेड लड़कियां बने और 100 से ज्यादा 1000 लड़कियों को फायर ब्रिगेड्स बने। यस, हम सब लोगों का यही होती है। थैंक यू। तुम भी फायर ब्रिगेड हो। कृति जी, आप प्लीज अनम्यूट करके बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं। स्नेहा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये सवाल उठाया, और मुझे बस इस पे ये कहना है, एक चीज ये उषा ने बहुत अच्छे से कनेक्ट आपकी बात का जवाब दे दिया। बस उसमें ये मैं जोड़ना चाहूंगी कि जो अपनी बातों को रखने का एक तो जो प्रैक्टिस का पूरा मामला है ना, इसके साथ में हम ये देखें कि हमारे समुदाय में भी बहुत सारी और भी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने डिसीजंस को अपने परिवार के सामने रखा है। तो आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलेंगी। तो सबसे पहले हम उनको आइडेंटिफाई करें और उनको एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट करें। हमको बाहर से रोल मॉडल्स भी ना लेके आए। अगर हम देखेंगे तो हमारे रोल मॉडल्स हमारे घरों में ही हैं, हमारे समुदाय में है, हमारे परिवार में है, हमारे पीयर्स में है। तो अगर आपके गांव के आसपास या आप जहाँ पे रहते हैं, शहर में जहाँ कहीं भी रहते हैं, आसपास अगर इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, उनको समूह में लेके आए और उनसे ये बातें करें, उनसे ये कहें कि आप अपनी कहानी बताओ कि आपने कैसे किया और ये आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, और आपने अपने समाज को या समुदाय को या परिवार को कैसे मनाया। और ये पूरा वो भी बहुत इंस्पायर करता है वो कहानियां सुन के। तो जैसे अभी कहानी सुना रहे थे हम लोग, और हम सब सुन रहे थे और सब कनेक्ट कर रहे थे उन कहानियों से अपने आप को, है ना। तो वो करके भी हम इसको देख सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much. I would request Monica to please share our last slide to wrap up this session. So we are actually going to share our PPT with all of you. एक हमारी इम्पैक्ट स्टोरीज के आगे हमारे ये वीडियोस हैं। अभी हम थोड़ा लेट हो गए तो मैं ये वीडियोस दिखाना नहीं चाहूंगी। मोनिका, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। ये 2 वीडियोस हैं जिसको हम जरूर एक्चुअली लिंक में डाल देंगे या शेयर कर देंगे, हमारी इम्पैक्ट स्टोरीज है लड़कियों की। However, now I would really want to wrap up. सबका समय का बहुत कीमत है यहाँ पर, तो thank you. We hope you have a relaxing weekend and that you have gained a deeper understanding of social emotional learning from this webinar. And I want to thank Global Glow for having the opportunity and giving us the opportunity to be able to work with them, to be able to पल्लवी मैं थोड़ा सा एक हेलो
पल्लवी जी, मेरा थोड़ा सा एक सवाल था। जी जी मैं गुलशन जहाँ श्रावस्ती से बोल रही हूँ। जी गुलशन जी बोलिए। मेरा नाम गुलशन जहाँ है, मैं श्रावस्ती से हूँ। मेरा एनजीओ का नाम गुलिस्ता सामुदायिक विकास समिति है। जो आप लोगों ने बात की, बहुत सारी ढेर सारी, वो हम लोग फील्ड में काम कर ही रहे हैं। मेरा एक चीज ये जानना था कि कोविड के समय में बहुत सारी लड़कियां ड्रॉप आउट हुई हैं। मैंने देखा है कि ज्यादातर 10th क्लास की और 12th क्लास की लड़कियां और स्कूल, मैंने देखा है कि वो नहीं जा रही हैं। मैंने उनके लिए कई बार जो लड़कियों को मैंने समझाया कि आप अपना कॉलेज ना छोड़िए, स्कूल ना छोड़िए। उनकी आर्थिक स्थिति, उनके गार्जियन से जब बात किया, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक थी कि वो स्कूल में एडमिशन करा सके। क्या ऐसा कोई स्कीम है क्या लड़कियों के लिए कि अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो सरकार के द्वारा उनकी फीस माफ हो, या कुछ इस तरीके से? मैं ये जानना चाहती हूँ। क्या इस पर कोई जवाब हेलो। देना चाहते? हाँ, मैं इस पे बोलना चाहूंगी। पल्लवी, आप सवाल जो पूछ रहे थे उनका नाम मैं जान सकती हूँ? मैं गुलशन जहाँ। गुलशन, WCD की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स ऐसी आई हैं जिसमें जो बच्चे कोविड के दौरान पे जिनके माता पिता की मृत्यु हुई है, उनको वार्षिक रूप में और उसका मासिक रूप में एक पैसा निर्धारित किया गया है, राशि जो उनको मिलेगी। और अगर वो राशि इस तरह से, अगर माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो कुछ ज्यादा है, और अगर दोनों में से एक की मृत्यु हुई है तो उसमें से थोड़ा कम है। कुछ इस तरह से उन्होंने प्लान उसमें किया है। ये WCD का है। अगर आप चाहेंगे तो हम शोहरतगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी को ये भेज देंगे, आप उनसे ले सकते हैं। और साथ में एजुकेशन के लिए भी लक्ष्मीबाई करके एक इनकी स्कीम है, जिसके तहत ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में है और ये बहुत अच्छे से क्रियान्वयन हो रही है, क्योंकि जो कोविड के दौरान पे जो बच्चे खासतौर पे जिनके माता पिता दोनों उनको छोड़ गए हैं, और या एक, तो उनको बहुत अच्छे से हम लोगों ने खुद उस स्कीम तक का लोगों तक पहुंच बनाई है, और ये वाकई विलिंग तरह से हो रहा है। तो अगर आप WCD जो आप डिपार्टमेंट है उसके संपर्क व्यक्ति से अगर आप मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको मदद होगी। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो हम पल्लवी और के साथ में ये लिंक शेयर कर सकते हैं और आप उनसे मदद ले सकते हैं। और गुलशन, काफी छोटे छोटे जो फाउंडेशन है, कृति ने तो बताया है जो उत्तर प्रदेश की सारी स्कीम्स के बारे में, बाकी भी कुछ और भी काफी फाउंडेशंस हैं जिन्होंने जिनके कोविड में जिनके पेरेंट्स में एक पेरेंट्स या दोनों या जिसका भी इस तरह का हानि हुई है, वो उनको खो दिया है, तो उनके लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप के भी काफी प्रावधान है। लड़कियों के लिए तो है ही है, लेकिन लड़कों के लिए, मतलब उस परिवार के लिए काफी सारे हैं। तो उनसे भी आप पता करके, ढूंढ करके, मतलब अब बीच में लास्ट मंथ तो काफी ऐसे कॉल्स आए थे चीजों के, तो उससे भी आप जोड़ सकते हैं उन लड़कियों को। हम डेफिनेटली ईमेल थ्रेड पर हमारे पास सबके एक्चुअली ईमेल है, तो हम ये जो आप बता रहे हैं इसके डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर करिएगा। हम अपने जितने भी आज लोग थे हमारे साथ मौजूद उनको ये ईमेल थ्रेड फॉरवर्ड कर देंगे जिससे मदद आगे पहुंच जाए। ठीक है, I will finally wrap up. Thank you so much, and thank you to my entire team. I think without their support, I wouldn't have been here doing this. And great opportunity, great learning, great patience of all of you want to be with us on your Friday night and so late. Thank you, Sandeep, Satyanshu, Monica, and my mentors who are the foundation of this program for us. We look forward to having these discussions again, and thank you speakers for being with us today, for your time, for your invaluable inputs. Thank you so much. Thank you, Pallavi. Thank you for our side, because you did really very wonderful and very hard work to connect us. हम लोग को जोड़ने के लिए, हम लोग को बुलवाने के लिए, हम लोगों से बार बार फॉलो अप और सारी चीजों के लिए। So really SES को तो थैंक यू, संदीप को और SES को, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे साथ जो पर्दे के बिहाइंड द कर्टेन जो टीम है उन सब के लिए रियली हम सब की ओर से, स्पीकर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। रियली ये हम लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम सबको मिलना और एक क्रॉस लर्निंग होना। सो थैंक यू टू यू।
थैंक यू उषा जी, थैंक यू कृति जी, आप लोगों को बोलने के लिए। कृति जी, आपके साथ तो बहुत कुछ सीखा है और उषा जी के जज्बे से हरदम कुछ सीखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आगे इसी तरह के डिस्कशन रखेंगे और जो भी एम्पावरमेंट या SEL के मुद्दे उस पर काम करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you everyone. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you. Bye bye, ma'am. Thank you so much, everyone. Bye Shubha.